माधव कुंज बिहारी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा वृंदावन बिहारी, राधा वृंदावन बिहारी राधे। जय महाप्रभु महाप्रभु महाप्रभु, जय महाप्रभु। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। एवं विष्णुपाद परमस परिवाचार्य दिव्यांगे शेषी भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की। एवं विष्णुपाद परमस परिवाचार्य दिव्यांगे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर शिल प्रभुपाद की। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की। प्रेम से कहो से कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की। जय श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की। ब्रजभूमि वृंदावन धाम की। मायापुर नवद्वीप धाम की। पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की। गंगा मैया की, यमुना मैया की, भक्ति देवी की, तुलसी देवी की, सामवेद भक्त वृंद की। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि। All glories to assembled devotees, all glories to assembled devotees, all glories to assembled devotees, all glories to Shri Guru and Shri Gauranga. Hare 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 Bol.
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। Reading from Srimad Bhagavatam, Canto 5, Chapter number 6, verse number 15. को नु अस्य कस्तम अपारो नुगच्छम मनोरात्ये प्रय अभयस्य योगे यो योगा मया सप्रहयति उदस्ता यस्तया येन कृता प्रपयत्या को नु अस्य कस्तम अपारो नुगच्छेम मनोरात्येनापि अथर्वस्य योगी यो योगा मया स्पृहयति उदस्ता हि असत्या येन कृता प्रयत्ने को नु अस्य कस्तम अपारो नुच्छम मनोराथ्येनपि अथर्वस्य योगी यो योगा मया स्पृहयति उदस्त हे असत्याया येन कृता प्रयत्या ओ नु सो यज्ञ मया स्पृहयति उदस्त हे असत्या येन कृता प्रयत्न. Anybody else? Word to word meaning. Ka, who, nu, indeed, asya of Lord Rishabdev, custom, the example, apara, else, anugachet, can follow, manaratyena, by the mind, api, even, abhyavasya, of the unborn, yogi, the mystic ya, ya, who, yoga madhya, the mystic perfection of yoga, spriyanti, desires, udasta, rejected by Rishabdev, he, certainly, asatya, by the qualities of being insubstantial, yena, by whom, Rishabdev, krita pradyatna, although eager to serve. Translation and purport by His Divine Grace A.C. Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada ki jai. Translation. Who is that mystic yogi who can follow the example of Lord Rishabdev, even with his mind? Lord Rishabdev rejected all kinds of yoga perfection which other yogis hanker to attain. Who is that yogi who can compare to Lord Rishabdev? Purport. Generally, yogis desire the yogic perfection of anima, labhima, mahima, prakamya, prapti, isitva, visitva, and kama kavyasthita. Lord Rishabdev, however, never aspired for all these material things. Such siddhis, perfections, are presented by the illusory energy of the Lord. The real purpose of yoga system is to achieve the favor and shelter of the lotus feet of the Supreme Personality of Godhead. But this purpose is covered by the illusory energy of Yogamaya. So-called yogis are therefore allured by the superficial material perfection of anima, labhima, prapti, and so forth. Consequently, ordinary yogis cannot compare to Lord Rishabdev, the Supreme Personality of Godhead. We'll continue with translation 16th.
Translation 16, translation and purport. Translation. Sukdev Goswami continued, Lord Rishabdev is the master of all Vedic knowledge, human beings, demigods, cows and brahmanas. I have already explained his pure transcendental activities which will vanquish the sinful activities of all living entities. The narration of Lord Rishabdev's pastime is the reservoir of all auspicious things. Whoever attentively hears or speaks of them, following in the footsteps of the Acharyas, will certainly attain unalloyed devotional service at the lotus feet of Lord Vasudev, the Supreme Personality of Godhead. Purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. The teachings of Lord Rishabdev are the teachings of Lord Rishabdev are for the people of all yugas, Satya Yuga, Treta Yuga, Dwapar Yuga, and especially Kali Yuga. These instructions are so powerful that even in this age of Kali, one can attain perfection simply by explaining the instructions, following in the footsteps of the Acharyas, or listening to the instruction with great attention. If one does so, one can attain the platform of pure devotional service of Lord Vasudeva. The pastimes of the Supreme Personality of Godhead and his devotees are recorded in Srimad Bhagavatam, so that those who recite this pastime and listen to them will become purified. Nityam Bhagavata Sevaya. As a matter of principle, devotees should read, speak and hear Srimad Bhagavatam persistently 24 hours a day. If possible, that is the recommendation of Chaitanya Mahaprabhu, Kirtaniya Sadahari. One should either chant the Hare Krishna Mahamantra or read Srimad Bhagavatam and thereby try to understand the characteristics and instructions of the Supreme Lord, who appeared as Lord Rishabdev, Lord Kapila and Lord Krishna. In this way, one can become fully aware of the transcendental nature of the Supreme Personality of Godhead. As stated in Bhagavad Gita, one who knows the transcendental nature of Lord's birth and activities attains liberation from material bondage and returns to Godhead. Om Agyantimirandasya Gnananjana Shalakaya Chakshurum Militam Yena Tasmai Shri Guruve Nama Sri Chaitanya Manobhishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Tadapi Swapadantikam Vande Ham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Sri Gurum Vaishnavamscha Sri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatham Mitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Sri Vishakam Vitamscha. He Krishna Karuna Sindhu Dina Bandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Stute Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpa Taruvesha Krupa Sindhu Vahevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Nama. Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Sivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Please accept my humble obeisances to all Prabhujis and Matajis. Dandavat Pranam, Hari Bol, Hare Krishna. Today I am going to be very careful. I will try to see to it that I'll finish it by 9 o'clock. No? I'll try to finish it by 9 o'clock. I want to take some question answers. If you allow me, if devotee wants to have some question answers, we'll discuss on that. These two verses of Srimad Bhagavatam which we are discussing today, the first verse is giving more emphasis that any person who has not understood what pure devotional service is will not be able to attain highest destination in spiritual life. Basically, this mystic yoga and all these things which all over the world people are so much attracted. If we see in reality, Prabhu, finally it's an enjoyment propensity. Just an enjoyment propensity.
What is the meaning of pure devotional service? What Gaudiya Sampradaya wants to give us is the meaning of pure devotional service is unmotivated, uninterrupted devotional service is the meaning of pure devotional service. Na dhanam, na janam, na sundarim, kavitam, va jagadisha kame, mama janmani janmani ishware bhavata bhaktir ahetuki tayi. I just want to serve you absolutely without any motivation. Prabhuji, this is very difficult. Take my words. Extremely difficult. बोलने में बहुत सहला है, धार 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 बोल देते हैं प्रभु, लेकिन ग्रॉस और सटल कुछ भी मेरे को सेंस ग्रेटिफिकेशन नहीं चाहिए प्रभु. इट इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट. ग्रॉस सेंस ग्रेटिफिकेशन तो ठीक है, हम लोग छोड़ देते हैं, 4 नियमों का पालन करेंगे और करेंगे कि भाई मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई एम गोइंग टू अवॉइड इट. लेकिन जो सटल सेंस ग्रेटिफिकेशन है, प्रॉफिट, एडरेशन, डिस्टिंक्शन, नेम, फेम, एक्सट्रीमली डिफिकल्ट. लास्ट दम तक जो है प्रभु हमको मारता रहता है. वो किधर ना किधर जो है हमको वो नेम, फेम, पावर, पोजीशन अंदर अंदर गुड गुड करके होता है. प्योर डिवोशनल सर्विस मीन्स एब्सोल्युटली नो मोटिवेशन एट ऑल. Krishna, I just want to serve you. And I can tell you, Prabhu, I have seen in my Krishna consciousness, whatever little bit of lifestyle which I have spent it, those devotees who are externally might be doing lots of devotional activities, but if they are not focusing on this particular aspect, that Krishna, I absolutely don't want anything from you. I just want to serve you. Unless until that consciousness is not totally fixed up. It might be so that way, Prabhu, you are not on that platform, but you are aspiring and seriously endeavoring for that. Absolutely you are endeavoring only for that. Then the potency of Krishna consciousness becomes very fast. It becomes very fast. But a person who is not focusing on that and trying to do all of the devotional service, the process is very slow, Prabhu. Finally, this is our gist, Prabhu. Basically, क्या होता है, हम लोग ये सब मैटर के ऊपर बहुत डिस्कस ही नहीं करते. We have to be very clear enough. Absolutely, I don't want any motivation. और प्रभु जी जब भी कुछ भी motivation आता है ना, तो पीछे से सिग्नल बजनी चाहिए. I am not following what Mahaprabhu wants to tell me. Na dhanam, na janam, na sundarim. I am not following. So first is absolutely no motivation, and second thing is no interruption. I am ready to serve you eternally, Mahaprabhu. These two things are very, very important for getting pure devotional service. There is a very good class of Radhanath Swami. The topic of that class is Maya knows you are in and out. I can tell you, Prabhuji, I'm hearing Radhanath Swami from last 1988 onwards. And I have something like, Maharaj has spoken something like 3,000 lectures Maharaj has given. Out of the 3,000 lectures, there are some 10 lectures which are my most favorite. Whenever I become loose, I hear those lectures. Out of the 10 lectures, one of them, this is the lecture, Maya knows in and out. I request seriously any devotee who really wanted to know what is pure devotional service and how Maya traps us, you should hear that class. In fact, Maharaj also told me at that time, today was a very heavy class. He spoke I think in 89 or 90 or something. And it was so heavy class. I'll tell you exactly whatever I remember it, I'll tell you what is there in that class. In that class, Maharaj was saying how Maya used to trap us in the name of devotional service, and how you have to be so careful. Basically what has happened is we are here in this material world is just because we wanted to become an enjoyer, proprietor, controller. If you see in depth, that enjoyment propensity is so deeply rooted. It is so deeply rooted. When you check it out in your consciousness, then you understand, बाप रे, ये तो कितना अंदर deep है. इतना सहला नहीं है इसमें से बाहर निकालना. क्या अंदर गुड़ करके पड़ा हुआ है अंदर. Maharaj was giving an example that the main focus for each and every devotee is, I am eternally a servant of the servant of the servant.
I don't want to be enjoyer, proprietor or a controller. My constitutional position is Jivera Swarupa Krishnera Nityadas. This is the basic thing of Krishna consciousness. Now what happens is when a devotee comes into devotional life, he has to follow the 4 regulatory principles and everything. So he started doing it. He becomes sincere also. So he compromises or he subdues his all this sense gratification in a gross way. But the enjoyment propensity has not gone. वो जो डीप रूटेड एंजॉयमेंट प्रोपेंसिटी वो जाती नहीं है. वो किधर ना किधर रास्ता निकालते एंजॉयमेंट करने का. कहां से एक रास्ता निकालेगा वो एंजॉयमेंट करने का. और अभी क्या है, बिकॉज ही हैज बिकम ए डिवोटी ना, सो बिकॉज ही हैज बिकम ए डिवोटी प्रभु, सो and enjoyment propensity is not gone. So gross way he will try to protect himself because he has to be called as a devotee. But subtle way, how he enjoys this is this way. Maharaj was speaking exactly. This is the way Maharaj was speaking. That whatever activities you do in devotional service, like you might be a good kirtaniya. So you do kirtan, and the main focus of kirtan is to please the Lord, correct? But Krishna is on the back door, and your intention is very clear. By doing kirtan, everybody should be happy and they should glorify me. By making me glorify, that means I am doing very perfect kirtan. उधर वो enjoyment propensity आकर के घुस जाता है प्रभु जी. And then afterwards what happens is, Prabhu, they glorify you, they praise you, and then you always seize it, you always go on checking it. कि अभी मेरे को वो कीर्तन के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा वैरायटी लाना पड़ेगा जिससे जो है ना मेरा वो कीर्तन का जो प्रेज है वो मेरा हमेशा के लिए चलता ही रहना चाहिए. पीपल शुड फील इट. नोबडी शुड टेल मी अभी तुम थोड़ा ढीला हो गया, पहले के जैसा अच्छा कीर्तन नहीं करता है. वो बहुत बड़ा शौक होता है. वो बहुत बड़ा शॉकिंग होता है लाइफ के अंदर. सो टू मेंटेन योर पोजिशन दैट आई एम ए वेरी गुड कीर्तनिया, you will be definitely improving yourself totally to see to it that you find some another ways, another system, kuch na kuch kar karke your quality of kirtan should go on improving. Externally, everybody will be thinking, ye kitna devotional karta hai, kya iska devotion hai, kitna Krishna ke liye kya kya kar raha hai. Lekin Krishna is on the back door, Prabhu. Your enjoyment propensity and your false pride is the most important in front of it. This is what exactly happens. It is not only in kirtan. You might be doing very good dressing. वो dressing तुम deities को बहुत अच्छा करता है. So when you do proper dressing, प्रभु, devotees will say, क्या dress? ये dress जो है ना प्रभु जी मुझे मालूम है ये devotee ने किया है. फट करके ये और वो जो है ना वो status आपको maintain करने का है. वो हमेशा उसके अंदर इतना डीप में जाएगा ना, उसका पीएचडी हो जाएगा. वो उसके अंदर पीएचडी हो जाएगा प्रभु. इतना वैरायटी देखेगा क्योंकि उसको अपना स्टेटस सिंबल मेंटेन करने का है. वैरायटी बनाएगा और हमको लगेगा और उसको भी लगेगा मैं सेवा कर रहा हूं. बट एक्सटर्नली प्रभु जी वी आर पैम्परिंग ओनली अवर एंजॉयमेंट प्रोपेंसिटी. कृष्णा इज ऑन द बैक डोर. कृष्णा इज ऑन द बैक डोर. महाराज स्पीकिंग. अरे ये पगड़ी वो ड्यूटीज को पगड़ी लगाता है ना, ये तो यही व्यक्ति पगड़ी लगा सकता है. इसके जैसा पगड़ी कोई दूसरा लगा ही नहीं सकता है. और वो पगड़ी वाला जो है ना वो डिवोटी ऐसा हर एक टाइम पे नया नया वैरायटी ढूंढते आएगा और वो पगड़ी लगाते जाएगा वो, जिससे जो है उसका स्टेटस जो है वहां पे बराबर मेंटेन हो जाए. सेम थिंग फिर बाद में जो है प्रीचिंग के अंदर भी जो है प्रभु जी अगर आपने बहुत सुंदर क्लास देते हैं और आपका स्टेटस हो गया है इसका क्लास सुनने को तो आने का ही, ये क्लास तो एकदम बढ़िया क्लास देता है ये व्यक्ति. और फिर जो है तुम जो है कोई बार आता है और कोई बार क्लास में कोई आया नहीं, कोई मिलने को नहीं आया, कोई बोला नहीं, अच्छा दैट मीन्स कुछ गड़बड़ है. पहला मेरे को लोग क्यों है हाँ बोलते तो अच्छा लगता था बिकॉज आई वॉज डूइंग दिस टाइप ऑफ ए थिंग. आई हैव टू मेंटेन दिस टाइप ऑफ ए थिंग एंड पीपल शुड कम एंड टॉक विद. क्या क्लास दिया प्रभु जी आपने. और उसमें कोई बार ऐसा बोला आज कुछ तुम्हारा गड़बड़ है, कुछ नींद नहीं हुआ क्या, आज मेरा भागवतम क्लास इतना अच्छा नहीं हुआ प्रभु जी आज आपका. इट इज अ बिग शॉकिंग थिंग टू यू क्योंकि वो एंजॉयमेंट प्रॉपर्ली गई. कृष्णा खाली नाम का है प्रभु, कृष्णा खाली रबर स्टैंप है. कृष्णा के नाम पे अपन मजा मस्ती चालू कर दिया आपने अपना.
क्योंकि वो ग्रॉस में नहीं होता है ना, अभी मजा मस्ती करने को, बाहर जाने का, फिल्म देखने का, टीवी में जाने का, घूमने जाने का, फ्रेंड सर्कल जाने का, वो सब बंद हो गया है। तो किधर ना किधर ये लेके आ जाने का और इसके अंदर से अपने को अपनी मस्ती चालू करने का। प्रभु माया इज सो स्ट्रॉन्ग। फिर महाराज में बैठा था ना उधर, महाराज ने मेरे को पकड़ा, आई वाज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ महाराज ओनली। यू आस्क क्वेश्चंस। मैंने बहुत क्वेश्चन पूछा है ना महाराज ने, मैंने महाराज को पूरा इधर से इन एंड आउट पूरा क्लियर कर रखा है मैंने। You ask good questions. So you maintain that standard. Questions, questions, variety, variety, variety. You are not concerned about your spiritual upliftment. You are concerned of only one thing. लोगों को समझना चाहिए अपना क्वेश्चन एकदम तगड़ा है, उसी के अंदर फंस जाते तुम। प्रभु कृष्णा कॉन्शियसनेस बहुत पीछे चला गया है। प्रभु जी, constantly you have to go on watching. That's why ना unmotivated devotional service means in a continuously you have to go on checking. मेरा ग्रॉस और सटल में कहां पर भी मेरा एंजॉयमेंट प्रोपेंसिटी आता है। एंजॉयमेंट प्रोपेंसिटी यानी कृष्णा कॉन्शियसनेस वीक होने लगेगा। प्रभु मैं आप लोग को टोपी घुमा सकता हूं, आप मुझे टोपी घुमा सकते हो। मतलब वी आर ऑल वेरी डिप्लोमेटिक पीपल। हम धंधे बंदे बिजनेस, आप लोग सब लोग ने पढ़ाई किया है, काम काज बाहर दुनिया में किया है, मैंने भी बिजनेस किया। प्रभु हम लोग बहुत डिप्लोमेटिक होते हैं और वही डिप्लोमेसी इधर लेके आते हो। प्रभु सेवा, डीटीज के लिए इतना सेवा करना है मुझे, इतना अभी तो बस इतना सेवा करना है कि डीटीज को बस इसमें एवरीथिंग। लेकिन डीटीज खाली नाम के पीछे से देखते रहने का है। सब लोग को मालूम है ना, अपना उत्साह, अपना अपना स्टैंडर्ड बराबर है ना, सबका प्रेज मिलता रहता है ना, ये फेस्टिवल बराबर किया, ये बराबर किया, ये बराबर किया, ये बराबर किया। लोग बोलना चाहिए तुम्हारे पहले जो पुजारी था ना, वो तो जरा भी इतना फेस्टिवल्स नहीं होता था, इतना ऑपुलेंस नहीं आता था डीटीज का, तुम ही क्या करता है। और वो इतना हृदय में फिक्स हो जाता है ना प्रभु, वो मेंटेन करने के लिए गधे के जैसा काम करते हैं हम लोग। कृष्णा खाली अपना बैकडोर में ही रहता है। प्रभु आई कैन चीट यू, वी कैन चीट मी। मैं आपको धोखा दे सकता हूं, आप मुझे धोखा दे सकते हो। आई कैन चीट यू, यू कैन चीट मी, बट वी कांट चीट कृष्णा। कृष्णा तो खुदा अंदर का एक्सरे निकाल करके बोले गए है, मुंह में राम बगल में छुरी। क्या करता है, क्या बातें करता है, तो समझ है तू क्या करता है। दिस इज व्हाट हैपेंस प्रभु जी इन डिवोशनल लाइफ। दैट एंजॉयमेंट प्रोपेंसिटी इज सो डीपली रूटेड, इट इज सो डीपली रूटेड, इट डजंट गो सो फास्ट, इट डजंट गो सो फास्ट। पूरे पूरे 84 लाख योनि में हमने खाली एक ही किया, किधर मजा मिलता है, जिधर मजा मिलता है भागो। और वो मजा के लिए अपना अपना पूरा जीवन का अस्तित्व होता है। और इधर सीधा पहला ही एबीसीडी अपने को बोलते हैं, जीवेर स्वरूप कृष्ण नित्य दास। वो जो है ना प्रभु एब्जॉर्ब करने के लिए बहुत तकलीफ होता है। सी एक्सटर्नली वी माइट बी एबल टू एब्जॉर्ब इट, but internally to come to that consciousness that I am eternally, I am sold out servant. Prabhuji, it is extremely difficult to get it realized and penetrate in our heart and just constantly go on seeing it. Prabhu, it is extremely difficult. अभी घी लैम्प होता है ना, घी लैम्प, वो घी लैम्प करेगा ना, फिर घी लैम्प करके हम प्रभुपाद को देंगे, फिर जिसको पहला घी लैम्प देता है ना, वो दूसरा सीनियर डिवोटी होगा, तो उसको दिया, मेरे को नहीं दिया, मेरे को पहला देना चाहिए, मैं उसके पहले आया था। ये लोग वैष्णव अपराध करता है, ये लोग वैष्णव अपराध करता है, ये लोग को वैष्णव एटिकेट मालूम नहीं है। They will not advance in Krishna consciousness. अरे वो छोड़ा एडवांस पर, तेरा ही गड़बड़ है। प्रभु जी वो आरती चल रहा है लेकिन उसकी खोपड़ी दूसरी जगह पे घूमने लगती है। और फिर बाद में बोलते हैं इसने तो ये ऐसा ऐसा क्या क्या किया है, उसको इतना जस्टिस क्यों दिया जाता है, उसको इतना एडोरेशन क्यों दिया जाता है। मेरे वो लोग को मालूम नहीं, मैंने इतना इतना सेवा की, इतने साल से पढ़ा हूं। खोपड़ी में इसमें क्यों एंजॉयमेंट, आई एम समथिंग ग्रेट, आई एम ए सीनियर डिवोटी, आई एम एडवांस डिवोटी। प्रभु सो डिफिकल्ट इट इज। और जो है ना, जो लोग ने वहां पे ही ध्यान दिया है ना, वहां पे वो फोकस किया है ना, उसी पे सुधरने के लिए, वहीं पे बता सुधरने के लिए कि मेरे को आई एम जीवेर स्वरूप कृष्ण नित्य दास, आई डोंट वांट एनी पोजीशन, आई डोंट वांट एनीथिंग बाय विच माय कृष्ण कॉन्शियसनेस इज गेटिंग डिस्टर्ब। जो लोग, और हो सकता है प्रभु ही माइट नॉट बी ऑन दैट प्लेटफॉर्म बट ही इज सिंसियरली ट्राइंग इट, दैट पर्सन इन रियलिटी मेक्स सीरियस कृष्ण कॉन्शियस प्रोग्रेस। लेकिन दो लोग खाली बाहर से बड़ा तिलक, कंठी माला, बड़ा धोती कुर्ता और बहुत बहुत ढम ढम करके माला लेकर के इतना जोर से आवाज करते हैं, लेकिन कॉन्शियसनेस में यह है, इन कृष्णा, इन फ्रंट ऑफ कृष्णा इज वेरी वेरी फार अवे प्रभु, वेरी वेरी फार अवे। वी हैव टू गो ऑन चेकिंग इट, किधर मैं फंसा नहीं हूं ना।
प्रभु सब चीज छोड़ने के बाद में इधर ना फंस जावे यार। सब सब आप लोग घर छोड़ा है, बिजनेस छोड़ा है, जॉब छोड़ा है, इतनी ऑस्टेरिटी कर रहे हैं और बाद में वही घुस करके बैठा है। सबको मालूम होना चाहिए अपना सर्विस सबसे बढ़िया सर्विस है। सब डिपार्टमेंट में, मंदिर के सब डिपार्टमेंट के अंदर सबको मालूम होना चाहिए अपना यानी बेस्ट, अपना पोजीशन है द पीक, इससे आगे कोई भी नहीं है। और अपने को कंसिस्टेंसी मेंटेन करने का हर वक्त है, कोई भी आएगा तो सबको मालूम होना चाहिए ये जगह, ये चीज इसका बेस्ट है टेंपल के अंदर, और वो मेंटेन होना चाहिए। कोई भी ऐसा नहीं बोलना चाहिए तुम ढीला हो गया। वो ढीला हो गया ना प्रभु जी, वो ऐसा झटका लगता है अपने को। कोई बोलता है ना इस बार ड्रेसिंग में मजा नहीं है, इस बार क्लास में मजा नहीं है, इस बार क्या थर्ड क्लास क्वेश्चन पूछता है तू, ऐसा पूछता है, न्यूऑफाइट भी नहीं पूछता है। और झटका लगता है, ऐसा झटका लगता है प्रभु जी, वो एक हफ्ता तक वही घूमता रहता है। कृष्ण एकदम बैकडोर में चला जाता है। ये हुआ है कि नहीं आप लोग का? है भाई, नहीं हुआ है आप लोग का? यू आर ऑल एलिवेटेड। मेरा तो बहुत होता है प्रभु जी, सीरियसली प्रभु। क्या है चीटिंग बाजी, क्या करना है? अभी कृष्णा कॉन्सियसनेस में आए, सिर झुका करके पूरी तरह से खुला होकर के बोलेंगे मुझे आप चाहिए कृष्णा, जो भी करना है करो, लेकिन अभी भाई फंस गया हूं यहाँ पे, मुझे इसका रास्ता निकलना है। दिस इज सीरियस कृष्णा कॉन्सियसनेस, नॉट टॉकिंग बिजनेस। We are here to see to it that we take the maximum advantage of the situation and get out from it. उसके लिए कुछ भी करेंगे भाई, खाली लटकने का है क्या? So this is what happens प्रभु। मेरा humble request, हाँ ये वो बहुत heavy class है। माया knows you are in and out। जिसको सुनना है सुन। उसके अंदर I have asked one question to Maharaj. This is also, of course, ये थोड़ा क्लास से दूर हो रहा है, लेकिन it is very practical also. I asked one question to Maharaj कि महाराज मेरा प्रॉब्लम, because I was suffering lots of asthma at that time। तो कभी कभी क्या होता है प्रभु जी, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है अपना जीवन में कि sometimes you are having a health issue and because of the health issue जो है ना प्रभु, you cannot do the devotional service what you were doing before। अभी क्या हुआ प्रभु जी, वो जो अभी हेल्थ इश्यू आ गया और वो तुम पहला जो है, जो तुम्हारा शेड्यूल होता है, मॉर्निंग प्रोग्राम आता है, सेवा करता है, तुम्हारा जो प्रोजेक्ट के अंदर है वो कुछ नहीं करता है तुम, बिकॉज हेल्थ इश्यू है एंड नोबडी इवन टेल्स यू आल्सो टू डू इट। और फिर आपका हेल्थ अच्छा हो जाता है ना, तब तक माया ने इतना आपको पकड़ लिया रहता है कि आप नॉर्मल नहीं जल्दी हो सकते हो, और तब तक माया आपको पकड़ करके कृष्ण भक्ति से दूर लेके जाती है। अनुभव हुआ है क्या? आपका प्रॉब्लम हुआ है क्या किसी का? ये प्रॉब्लम होता है। तो मैंने महाराज को ये प्रश्न पूछा कि जब भी मेरा हेल्थ इश्यू आ गया है और तभी अगर मैं मैं फैनेटिक होकर के करूंगा, चलो भाई नहीं मेरे को करना ही है, मैं भक्ति करना ही चाहता हूं, भले कुछ भी होगा, तो हेल्थ ज्यादा डिटीरियोरेट होती है, तो ज्यादा मार खा जाता हूं। तो मुझे एक ऐसा पैरेलल लाइन दिखाओ कि मैं जो है वहां पे जब भी मुझे हेल्थ इश्यू आया, तभी वो हेल्थ इश्यू के वक्त पे मैं पक्का मैच्योरिटी के साथ में देखूं कि मैं मेरा हेल्थ का भी प्रॉब्लम सॉल्व करूं और मेरा कृष्ण कॉन्शियसनेस वीक भी ना हो। दैट इज मैच्योरिटी, करेक्ट? तो वो कैसे करूं, वो क्या है, वो कैसा फॉर्मूला होना चाहिए? ब्यूटीफुल रिप्लाई। अरे इतना प्रैक्टिकल हुआ है ना, इतना आई हैव सीन इट इन माय लाइफ, इट हैज हेल्प मी सो मच। महाराज बता रहे थे मुझे कि जब भी ऐसा कुछ इश्यू आया कि भाई तुम्हारा हेल्थ इश्यू ऐसा है, मैंने बोला महाराज मैं हैविंग अस्थमा, अस्थमा में ऐसा प्रॉब्लम हो जाता है, यू कैन नॉट डू एनीथिंग। और अगर तू आ गया इधर तो हेल्थ अस्थमा और डिटीरियोरेट होने लगता है, तो आराम करना जरूरी है, लेकिन आराम करने के बाद में अस्थमा बराबर होता है तो वापस नॉर्मल होने में दम निकलता है। वो आलस ऐसा घुस जाता है ना प्रभु जी, बिकॉज एक वाक्य राधानाथ महाराज का बहुत बहुत सीरियस एंड वेरी इंपॉर्टेंट है। एंड व्हाट इज दैट, व्हाट इज दैट सेंटेंस? देयर इज नो इन बिटवीन इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। Either you are in Krishna consciousness or you are in Maya. There is no in between anywhere. There is no in between. And little bit negligence in Krishna consciousness, that means there is nothing कि भाई इतने साल मैंने जपा किया है, इतना साल मैंने किया है, इसलिए मेरे को कंसेशन मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। ढाड़ करके नीचे ही जाते तुम। Then he gave 2 examples। महाराज थोड़ा वापस आऊंगा, ये सब थोड़ा मेरे को जल्दी पूरा करना है ना, बाप रे मैंने बहुत अभी तो मिस्टेक पे गया ही नहीं मैं। आज मेरा नक्की भी किया था कि मैं जल्दी खत्म करूंगा, क्या करूं प्रभु जी, छोड़ दो, बोलते जाओ। तो फिर महाराज ने 2 एग्जाम्पल दिया। वो 2 एग्जाम्पल ऐसा है कि when you are swimming on the opposite direction of the water in this river, so you have to really push yourself। थोड़ा भी आगे जाने के लिए तुमको इतना मेहनत करना पड़ता है स्विम करने के लिए, और बहुत मेहनत करने के बाद में थोड़ा आगे जा सकता है, क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन से पानी आता है ना। लेकिन तुम बोलेगा अरे इतना मेहनत किया है तो थोड़ा आराम करता हूं,
थोड़ा भी आराम किया तो ढक करके नीचे। वो कंसेशन नहीं है उधर, हे भाई इसने इतना मेहनत किया तो उसको वहां पे खड़ा रखो, ऐसा नहीं है, ढाड़ करके नीचे आ जाता है। ऐसा ही जो है तुम साइकिलिंग करते है ना, अगर स्टिप माउंटेन के ऊपर तुम साइकिलिंग करेगा ना तो तुमको बहुत पैडल मारना पड़ता है, बहुत पैडल मारेगा तो थोड़ा सक्सेस मिलेगा आपको। लेकिन थोड़ा तुम सक्सेस मिलने के बाद में थोड़ा बोलेगा अरे अभी थोड़ा आराम, बहुत पाँव दुख रहा है, थोड़ा आराम करो, जैसा थोड़ा आराम तो ढाड़ करके नीचे। एग्जैक्टली डिवोशनल लाइफ में भी इस तरह से है। बाहर का माया इतना स्ट्रांग है, तुमने थोड़ा भी नेग्लिजेंसी तुम्हारे कृष्णा कॉन्शियसनेस में दिखाया ना प्रभु, तो ऐसा नहीं इतने साल से भक्ति किया है तो कंसेशन, ऐसा कुछ नहीं होता है। दरिस ढाड़ करके नीचे। I think I've spoken yesterday to the Brahmachari class. Radhanath Maharaj has given me very heavy statement. He told me the day you feel very secure in devotional life, the day you feel very secure, करे यार इतने साल से भक्ति किया है, इतना भक्ति किया है, इतना लाइफ के अंदर फोकस कर लिया है, now I'm secured. Maharaj gave me a very heavy statement. He said the day you feel you are secured in devotional life, अंडरस्टैंड दैट इज योर लास्ट डे इन योर डिवोशनल लाइफ। मैंने बोला कभी मैं सिक्योर हो सकता हूं महाराज? कभी एक कोई ऐसा टाइम तो आना चाहिए कि वेयर आई फील आई एम सिक्योर इन डिवोशनल लाइफ। देन ही टोल्ड मी यू कैन बी सिक्योर्ड ओनली व्हेन यू लीव योर बॉडी, व्हेन कृष्णा रिसीव्स यू इन गोलोक वृंदावन, एंड ओनली नॉट ओनली रिसीव्स यू, ही एम्ब्रेसेस यू and he tells you that now welcome in Golok Vrindavan, come to your constitutional position now. Now you are engaged in constitutional position, and when you start engaging your constitutional position with Krishna and with all your whatever the original situation was there in that, you are already started doing that, then you can feel secure. Till that time anything can happen at any time. You have to be so alert, so on guard. प्रभु मैं हमेशा, सॉरी प्रभु जी अभी मैं बहुत डाइवर्ट होते जा रहा हूँ, कुछ दूसरा ही बोलते जा रहा हूँ। आई एम कन्विंस विद वन थिंग प्रभु, थॉरोली आई एम कन्विंस विद वन थिंग, यहाँ पे आना बहुत सैला है, लेकिन यहाँ से बाहर निकलना बहुत कठिन है। एक समझदार आदमी होगा ना प्रभु जी, उसको समझ में आएगा इधर से इतना कठिन है बाहर निकलने के लिए। रगड़ जाते हैं प्रभु जी बाहर निकलने, कहां कहां से वो एंजॉयमेंट प्रोपेंसिटी आकर के अपनों को फंसा देती है। किधर ना किधर हम फंस जाते हैं प्रभु, और वो फंस जाते हैं और बाहर से हम बोलते हैं अरे इतना बड़ा तिलक करेंगे, कंठी माला करेंगे ना, बीड बैग करेंगे ना, घूमेंगे ना, एडवांस डिवोटी, सीनियर डिवोटी ना, सिंसियर डिवोटी, और सब लेबल बेबल भी ले लेंगे, लेकिन अंदर से खाली एक ही है, आई एम एन एंजॉयर, प्रोपराइटर, कंट्रोलर। ग्रॉस में नहीं होगा कुछ भी, ग्रॉस में तो अरे प्रभु फिल्म, अरे फिल्म कैसा हो सकता है, डिवोटी हूं, 30 साल का डिवोटी हो, कैसा हो जाएगा? कुछ बाहर का खाने का, अरे बाहर का कैसा खा सकता है, प्रसाद के बिना कुछ नहीं लेता हूं, बाहर का पानी भी नहीं लेता हूं। फिर कोई बोलेगा प्रभु जी आप कोई आपका कुछ घूमने जाने का, घूमने, अरे घूमने क्या है, ओनली वृंदावन मायापुर, नथिंग एल्स, नथिंग एल्स। अभी उधर से एकदम लिमिटेशन सबको बताएगा क्या एडवांस डिवोटी है, क्या सिंसियर डिवोटी है, क्या कमिटेड डिवोटी है, क्या फोकस डिवोटी है, लेकिन अंदर से खाली एक ही चीज होता है अपने मन में, सबको मालूम होना चाहिए मैं एडवांस हो गया हूं, सबको समझ में, कोई भी अपने को बोला है तो पीछे से अपने को समझ में आना चाहिए सब बहुत एडवांस डिवोटी, बहुत सिंसियर डिवोटी, बहुत फोकस डिवोटी। ये डिवोटी ने अपना लाइफ के अंदर पूरी तरह से जो है कृष्णा कॉन्शियसनेस प्रायोरिटी रखा है, और फिर वो मेंटेन करने के लिए कुछ भी करेंगे। अब कृष्णा एकदम बैकडोर में ही रहेंगे, कृष्णा पीछे है, कृष्णा के नाम पे हम हमारी मस्ती चालू रखेंगे। दिस इज व्हाट आई कैन टेल यू प्रभु जी, कृष्णा का नाम है और अपना एंजॉयमेंट प्रोपेंसिटी कंटिन्यूस चलता रहता है। प्रभु इट इज सो डिफिकल्ट, इट इज सो डिफिकल्ट। Don't think that by spending 20 years, 30 years, 40 years in devotional life, this thing will go away. This thing will go away only when you are thoroughly convinced, I just don't want to become an enjoyer. I want to be a servant. This is my constitutional position. Till the time I will not become a servant, I will be suffering. और प्रैक्टिकल है अभी जो है, नाउ लेट अस, प्रभु जी वो मालूम भी होना चाहिए ना कि सर्वेंट होने का फायदा क्या है, नहीं तो क्या मतलब है प्रभु जी। once you have to be very practical. Once you do any service
to the Lord or to devotees. This is so practical. Once you do any selfless service, absolutely gross or subtle, कुछ भी सेवा पूरी selflessly you are doing it. After doing that service, that devotee, he becomes very happy with that service. So, if he becomes happy with that service, sincerely happy, खाली बातें करने वाला नहीं, एकदम seriously happy हो गया, and he feels it, क्या ये devotee बेचारा सेवा करता है, and that too also because he understands, I have absolutely no motivation, gross or subtle, anywhere, to have anything in return of from me. आप देखना प्रभु जी, आप अनुभव भी करना, आप वो सेवा जब करते हो ना, आप वो व्यक्ति तो डेफिनेटली खुश होता है, लेकिन उससे ज्यादा आप खुश होते हो. You become more pleased than that devotee. Why? Because Krishna is very pleased with you. Barometer देखना, कभी भी जो है ना, this is what I always, many times I used to check myself. Whenever you do some nice service ना, तो you have to be getting convinced ना कि कृष्णा खुश है मेरे से. तभी कृष्णा को थोड़ी हमारे पास आकर के बोलेगा वेरी हैप्पी, थैंक यू, ऐसा कुछ नहीं होता है. लेकिन जिस दिन आपने बहुत सीरियसली सेवा किया और एब्सोल्युटली सेल्फलेस सेवा किया है ना प्रभु, आप देखना प्रभु जी, दूसरे दिन सुबह में जपा करते बैठते हो ना, तो यार पहले तो इतना, कल तो इतना प्रॉब्लम हुआ जपा करने में, इतना कॉम्प्लिकेशन जपा कैसे भी करके धक्का मार के जपा किया है मैंने, और आज इतना अच्छा जा रहा है. इतना फोकस और इतना नरिशमेंट मिल रहा है. ऐसा कैसे हो गया मेरी लाइफ के अंदर. फिर कल थोड़ा चेक करेंगे कि कल का दिन मैंने क्या बैलेंस शीट निकालेंगे ना, रिकॉर्ड देखेंगे ना हम लोग, उसमें सब मालूम गिरेगा कि कुछ सेवा किया है, और ऐसा सेवा किया है कि एब्सोल्युटली कोई नहीं है, मेरा खाली सेवा ही की, और वो व्यक्ति इतना अंदर से खुश हुआ है, वो खुश हुआ है इसलिए कृष्णा खुश हो गया, और कृष्णा खुश हो गया इसलिए कृष्णा अपने को रिवॉर्ड दे रहा है. दिस इज व्हाट आई हैव सीन इट सो मेनी टाइम्स. दिस मेक्स इट क्लियर इनफ. By serving only you become a real in true sense enjoyer, not by enjoying you become enjoyer. समझ में आ रहा है? Can you imagine? Can you understand what I'm saying? This is what the reality of Krishna consciousness is. और ये चीज जो है ना समझते ही नहीं हम लोग. In fact, I can tell you one thing more. The more and more you advance in Krishna consciousness, if you are not careful, your enjoyment propensity, if you are not careful, that becomes more stronger. How it becomes stronger? Because क्या होता है कि तुम्हारा सीनियर पोजीशन हो गया ना, और तुमने वो टेस्ट लिया नहीं है, सीरियस डिवोशनल लाइफ का टेस्ट नहीं लिया है, सो यू आर हैंकरिंग टू गेट सम टेस्ट. अभी वो तो कृष्ण कॉन्शियसनेस का टेस्ट लिया नहीं, क्योंकि उसकी कीमत चुकाई नहीं है आपने, उसकी कीमत चुकाई नहीं है, इसलिए अभी आप इधर उधर भागेंगे ना टेस्ट लेने के लिए. और वो टेस्ट लेने के लिए जब आप भागोगे प्रभु, तो आपको जो है ना इधर का इधर बहुत अच्छा है बोलता है, सीनियर डिवोटी, हेड ऑफ दिस डिपार्टमेंट, परफेक्ट डिपार्टमेंट, वेरी नाइसली डन, वेरी वेरी वंडरफुल, व्हाट ए सरेंडर सोल, कंप्लीटली सोल्ड आउट टू प्रभुपाद, सोल्ड आउट टू गुरु महाराज, नो अदर मोटिवेशन. प्रभु ये ऐसा अंदर घुस जाता है ना, उधर सामने सामने भी कोई आपने कोई 2-3 डिवोटी मिलता है ना, और आप साइड में से जाएगा ना, तो फिर बाद में थोड़ा दूर जाने के बाद मतलब ये लोग ने मेरे लिए बात किया कि नहीं किया, मैं कैसा हूं, लोग ने बात भी नहीं किया मेरा. दे डोंट अंडरस्टैंड दैट. और बात किया तो फिर बाद में थोड़ा धीरे से हम सुनना चाहते हैं, क्या बात किया, अपना स्टेटस बराबर उधर है ना, अपना पोजीशन वहां पे बराबर सिक्योर है ना. प्रभु वो मेंटेन करने के लिए पूरा जीवन दे देते, फिर पूरी लाइफ उसके लिए दे देते हम लोग, वो मेंटेन करने के, वो पोजीशन मेंटेन करने के लिए. प्रभु, दिस इज नॉट डिवोशनल सर्विस, दिस इज नॉट डिवोशनल सर्विस. दिस इज वेयर वी कंप्लीटली गेट हुक्ड अप. नाउ कमिंग बैक टू मिस्टिक. ये मिस्टिक का मेरे पे क्लास देने का था, इधर ही दूसरा बोल दिया मैंने. मिस्टिक इज एग्जैक्टली द हायर स्टैंडर्ड ऑफ एंजॉयमेंट प्रोपेंसिटी. अभी हम टक्कू मक्कू लोग जो है वो मिस्टिक नहीं हो सकते है ना, हमारा स्टैंडर्ड क्या मिस्टिक होने का. उसके लिए थोड़ा ज्यादा तपस्या करना पड़ता है, थोड़ा योगा करना पड़ता है, थोड़ा वो हिसाब से ऑस्टेरिटी करना पड़ता है, वो एक प्रोसेस है उसके लिए. वो जो है वो यू हैव ए सिंसियर डिजायर एंड यू फॉलो दैट योगा प्रैक्टिसेस इन दैट बेसिस दैट यू गेट मिस्टिक पावर. वो अपने तो टक्कू मक्कू है, अभी 4 नियमों का पालन करने में ही गड़बड़ होता है, 16 माला कैसे भी करके करते हैं, तो अपने को स्टैंडर्ड पे नहीं जाता है.
तो अपना तो इधर तक ही जाएगा, अपना एंजॉयमेंट प्रोपेसिटी इधर तक जाएगा, अपन मजा मस्ती करने की कोशिश करेंगे। मिस्टिक वाला क्या करता है, मिस्टिक वाला का स्टैंडर्ड मजा मस्ती का बहुत हाई है, उसका स्टैंडर्ड हाई है, हमारा तक्कू मक्कू का है, उसका हायर है। वो मिस्टिक वाला का क्या होता है, वो जो है ना मिस्टिक सिद्धि की वजह से वो एंजॉय तो करता है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट विद दैट एंजॉयमेंट ही कंट्रोल्स पीपल। प्रभु राधानाथ महाराज का एक सेंटेंस है, मोर देन इलिसिट सेक्स मोर डेंजरस इज कंट्रोलिंग पीपल। दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ राधानाथ महाराज। ये कंट्रोलिंग प्रोपेंसिटी इतनी भयानक होती है ना, और प्रभु याद रखना ये कंट्रोलिंग प्रोपेंसिटी हमारे में भी बहुत है, क्योंकि क्या है, थोड़ा सीनियर डिवोटी होते हैं ना, थोड़ा डिसाइपल आजू बाजू घूमने लगता है ना, तो हम उसके पीछे काम पे लगाते हैं अपना, और अपन मजा मस्ती करना चाहते हैं उससे। वो कंट्रोलिंग प्रोपेंसिटी जबरदस्त हो जाती है। मिस्टिक के अंदर वो कंट्रोलिंग प्रोपेंसिटी आ जाती है, क्योंकि लोग पागल हो जाते हैं ना, भगवान कल की अवतार भगवान है, क्या लेके आता है। हमारे प्रभुपाद एक एग्जांपल देते थे ना, राधानाथ महाराज ऑलवेज यूज्ड टू से, वो कलकत्ता में बैठे हैं और एक मिस्टिक ने पोमग्रेनेट, दाड़म दाड़म बोलते ना, पोमग्रेनेट का जो है वो उस समय कुछ सीजन में कुछ मिलता नहीं, पोमग्रेनेट खाली काबुल में अफगानिस्तान के अंदर मिलता है, उस समय किधर भी नहीं मिलता है। तो किसने बोला पोमग्रेनेट तो मिलता नहीं है, तो वो मिस्टिक ने क्या किया, ऐसा ही हाथ ऊंचा किया और पोमग्रेनेट हाथ में आ गया। पोमग्रेनेट, सब पागल, भगवान 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 भगवान, फ्लैट हो जाते। ऐस में से सोना लेके आया, सोना ले लो। अरे थोड़ा कैलकुलेशन मारे करके सोना लेके आते तो वही करोड़पति नहीं हो जाता यार। 60,000 रुपया भाव है सोने का 10 ग्राम का, है ना, 100 ग्राम भी सोना होता तो 6 लाख रुपए का होता है, वही करोड़पति अबजोपति नहीं हो जाए। लेकिन ऐसा पागल लोग हो जाते हैं ना, ऐसा पागल हो जाते हैं उसकी वजह से। लेकिन ये मेन चीज क्या होता है मालूम है प्रभु जी, वो व्यक्ति जो है मिस्टिक पावर उसके लिए बताता है जिसके उसको भी वो एंजॉयमेंट प्रोपेंसिटी तो होती है, भगवान दंडवत करता है, उसके पीछे जाता रहता है, किधर भी जाएगा तो उसके पीछे लोग घूमेंगे, भगवान 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 महाभक्ति। और वो वापिस जो है ना प्रभु जी ऐसा अपने को टोपी घूमता है ना प्रभु, वो कृष्णा को बीच में ही रखता है, मैं ये सब चीज इसके लिए करता हूं जिससे आप कृष्णा भक्ति में आ जावे। थोड़ा दिखाना पड़ता है जिससे आपको, ये सब कृष्ण ने दिया है मुझे, ये सब कृष्ण ने शक्ति दिया है, ये सब कृष्ण ने मेरे को दिया है, आप कृष्णा की सेवा करो। कृष्णा का रबर स्टैम्प मारते रहते हैं, इसलिए लगता है कि क्या एडवांस डिवोटी है, क्या आगे निकल गया है। लेकिन अंदर से वही है कि सब मेरा अंदर कंट्रोल। प्रभु जी कैन यू इमेजिन, आपको एक मिस्टिक पावर ऐसा भी होता है कि जो है तुम्हारे माइंड के अंदर क्या हो रहा है वो मेरे को समझ में आ जाता है, और तुम माइंड के अंदर जो बोलते हो उसके पहले मैं बोल देता हूं, और तुम्हारा माइंड जो बोलते है उसके पहले काउंटरैक्ट करके मैं बढ़ा देता हूं, इसलिए तुम जो है पूरा सोल्ड आउट हो जाते हो उसके पीछे। यू बिकम लाइक ए स्लेव प्रभु, यू बिकम लाइक ए स्लेव ऑफ हिम, उसके जैसे स्लेव के जैसा काम करते हैं, और वो तुम एंजॉय करता है। ये आदमी को ऐसा मैं घुमाता रहता हूं, इधर ही भागेगा, इधर जाएगा मेरे लिए करेगा, और वो तुम्हारा जो सेंस ग्रेटिफिकेशन है कृष्ण के नाम पे रबर स्टैंप ले लेते हैं। जीवे रे स्वरूप है कृष्ण रे नित्य दास, प्रभु भूल जाते हैं हम लोग, उसी में फंस जाते हैं। दिस इज व्हाट मिस्टेक इज। प्रभु जी थोड़ा ध्यान से देखिए, प्रभु हरिदास ठाकुर was chanting 192 rounds every day, correct? When he was chanting 192 rounds every day, he could have spent some time for mystic also. कृष्णा को बोल सकते हैं थोड़ी शक्ति दे दो मुझे यार, और माया जैसा माया को भी जो है उसने टक्कर मार दिया अपने हरि नाम की वजह से। मिस्टिक नहीं मिल सकता क्या उसको, कितना सिंपल है उसके लिए। लेकिन हरिदास ठाकुर का क्या स्टैंडर्ड था प्रभु जी, जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, ही डिडंट एक्सेप्टेड मिस्टिक। खाली एक ही जगह पे उसने मिस्टिकिज्म बापरा है, वो कभी बापरा है, वो जो है ना वो 22 मार्केट प्लेस के अंदर उसको मारा, और फिर जब वो लोग ने बोला कभी तुम मरेगा नहीं तो हमको मार देगा ये लोग, तो जस्ट टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ ही हैड शोन दैट ही हैज बिकम डेड मैन, और वो लोग को जब नदी में डाल दिया फिर बाद में उठ करके आ गया। एंड दैट वाज नॉट फॉर हिमसेल्फ, दैट्स टू प्रोटेक्ट दोस पीपल। Otherwise, he has never shown this mystic. He was a very great mystic, but he has never shown it. Why? Because he understood it. Enjoyment, propensity is the biggest bottleneck. प्रभु जी
हम भी अगर 192 भी करेंगे लेकिन वो मेंटल वो कॉन्शियसनेस नहीं रहेगी ना, वी विल नॉट गेट द पोटेंसी ऑफ चैंटिंग। चैंटिंग करेंगे लेकिन वो अभी भी मजा कर रहा है, मजा कर रहा है, मजा कर रहा है, उसमें फंस जाते हैं। टेक द एग्जांपल, अभी वो बोलेगा प्रभु तो 500 साल पहले की बात है यार, अभी थोड़े है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभु जी, एवरीबडी नोज इट दैट ही हैड टेकन ए वाव। उन्हें एक प्रतिज्ञा लिया था कि मैं प्रचार कार्य शुरू करने के पहले 100 करोड़ हरे कृष्ण महामंत्र करूंगा। कितना? 100 करोड़। उसने, मैं इस तरह से वाव था प्रभु जी, ही वॉज चांटिंग 192 राउंड्स एवरी डे जस्ट लाइक हरिदास ठाकुर। सो एक दिन में 3 लाख रुपया, 3 लाख जपा होता है, 30 दिन के अंदर 90 लाख होता है। उसमें भी भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर टेक अनदर भाव कि वो 90 लाख तो हो जाता है, लेकिन जो है जस्ट टू सी दैट माई डोंट गेट इवन अ सिंगल मिनट फ्री टाइम, तो उन्होंने एक दूसरा भाव लिया था कि वो महीने के अंदर 1 करोड़ हो जाना चाहिए। तो किधर किधर थोड़ा फ्री टाइम भी मिला तो उसके अंदर भी जपा ही होना चाहिए। उनका भाव था महीने में 1 करोड़ होना चाहिए, यानी 12 महीने में 12 करोड़। तकरीबन 9 साल लगा प्रभु जी उसको, एक भी दिन छुट्टी लिए बिना, नो हॉलीडेज। बरसात के अंदर भी वो छाता लेकर के हरिनाम लेते रहते थे। कैन यू इमेजिन प्रभु जी, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को अगर मिस्टिक करना होगा तो वो क्या कर सकते थे? एंड दिस वाज ओनली 100 years बैक, दिस वाज ओनली 100 years बैक। उनके पीछे कितने लोग जो है उसको मारने की कोशिश किया है, करेक्ट, बिकॉज ही वॉज ए वेरी डायनामिक प्रीचर। ही कुड हैव यूज्ड हिज मिस्टिक पावर। जीवेर स्वरूप कृष्ण नित्यदास, he didn't took it, and due to that reason he could get the highest destination of Krishna consciousness. Same thing with our 6 Goswamis. हमारा 6 गोस्वामी प्रभु जी, कैन यू इमेजिन वो लोग ने कितनी ऑस्टेरिटी किया है। मैं हमेशा विचार करता हूँ प्रभु जी, सनातन गोस्वामी है, ही वॉज द प्राइम मिनिस्टर, करेक्ट, ऑफ बंगाल। वो रोज एक एक झाड़ के नीचे सोते थे, जो भिक्षा मिलता था उसमें प्रसाद लेते थे, और जो फटा हुआ कपड़ा था वो ले करके सी करके पहनते थे, करेक्ट, करेक्ट। अभी हमारा नरेंद्र मोदी जो है, वी हैव ए वेरी हाई रिस्पेक्ट फॉर हिम। अगर वो जो है प्रभु वो झाड़ के नीचे सोएगा, भिक्षा मांगेगा, फटा हुआ कपड़ा पहनेगा, प्रभु जी कैन यू इमेजिन हम क्या बोलेंगे यार, क्या आदमी है यार। भगवान को भूल जाएगा, नरेंद्र मोदी अपना भगवान हो जाएगा, करेक्ट, वही अपना भगवान हो गया। Sanatan Goswami was on that platform, Prabhu. Sanatan Goswami, although on that platform, and he could have done, he has done so much austerity, Prabhu ji. Can you imagine, रोज गोवर्धन की परिक्रमा करना, वहां तक कि कृष्णा को आकर के बोलना पड़ता है, अभी इसका ही 4 बार परिक्रमा करो बाबा, मैं तुम्हारी ऑस्टेरिटी देख करके मैं हिल जाता हूं। ये इतना, ये लेवल का आदमी ने भी मिस्टेक नहीं लिया, मिस्टेक नहीं लिया प्रभु जी। इन लोगों को शुद्ध भक्ति मिलती है भाई, इन लोगों को शुद्ध भक्ति मिलती है। हमको चेक करना है यार, सिर झुका है तो पूरा झुका के रहूंगा मैं। अभी मुझे ये सब चीज के अंदर लटकने का नहीं है। 2-5 मजा मस्ती के, 2-5 अच्छा वाक्य और 2-5 महीना, 2-5 साल के अंदर एक अच्छा पोजीशन उधर मिल गया और वापस इधर ही लटक गया। क्या पाया मैंने यार? व्हाट डिड आई गेन आउट ऑफ इट? मैच्योर डिवोटी बोला कि कुछ नहीं चाहिए कृष्णा, मेरे को कुछ नहीं चाहिए। अभी मुझे अक्कल आ गई है, जितना मैं जो है ना एंजॉय करता हूं उतना इधर सफर करने वाला हूं। दिस इज व्हाट इज रिक्वायर्ड। 6 गोस्वामी देखो, हमारे प्रभुपाद जी जो है प्रभु जी, ही कुड हैव डन, प्रभु जी वी डोंट नो, प्रभु जी प्रभुपाद हैज नेवर शोन हिज एनी मिस्टिक पावर, ही हैज नेवर शोन इट। ही कुड हैव गॉन इन द वेस्ट के अंदर जो है सब लोग आ गए थे, प्रभुपाद थोड़ा मिस्टिक पावर दिखाते थे ना, पूरी दुनिया पीछे जाती थी। लेकिन प्रभुपाद kept that principle so serious in his life, so serious प्रभु जी। कोई भी बोलता ना, I want this, I want this, I want, प्रभुपाद always used to say, chant Hare Krishna, serve the devotees and Krishna will take care of it. प्रभुपाद said, I will take care of नहीं बोला है, Krishna will take care of it। क्या क्लियर रखा है उन्होंने लाइफ में। महाप्रभु क्या है यार, ये परंपरा है अपनी। महाप्रभु के शिष्टाष्टकम वर्ष में देखिए क्लियर कट है, ना धनम ना जन्म ना सुंदरीम कविताम वाग जगदीश कामय मम जन्मनि जन्मनि ईश्वरे भवता भक्ति अहेतुकी तई। प्योर डिवोशनल सर्विस मींस ना धनम ना जन्म ना सुंदरी। लेकिन वहां तक महाप्रभु रुके नहीं है।
महाप्रभु आगे जाएंगे ना तो आपको सिस्टम वर्ष के अंदर यही नंद तनुजा किंकरम पतिताम वा विश्व में भवाम बुधो कृष्णा आई जस्ट वांट टू बी ए स्पेक ऑफ डस्ट एट योर लोटस फीट। मिस्टिक ऐसा बोलेगा क्या? उस पर मजा मस्ती नहीं होता है उधर मजा मस्ती नहीं आने वाला। स्पेक ऑफ डस्ट में क्या आएगा? मजा मस्ती आएगी क्या? आगे जाएंगे तो वो विशिष्टाष्टकम वर्ष में क्या बोलेगा? शून्यायतम जगत सर्वम गोविंदम विरहण में कृष्णा एवरीथिंग इज नॉनसेंस, मुझे तुम ही चाहिए, दूसरा कोई नहीं चाहिए। मिस्टिक वाला नहीं कर सकेगा वो प्रभु, मिस्टिक वाला नहीं कर पाएगा वो। और फाइनली महाप्रभु क्या बोलते हैं? अश्लिष्य वा पादृतम पिनश्यमाम कृष्णा इफ यू एक्सेप्ट मी, आप मुझे रिजेक्ट कर दो, आपको जो करना है कर सकते हो, आप मेरे स्वामी और मैं आपका दास हूं। प्रभु मिस्टिक होगा तो वो नहीं कर पाएगा। मिस्टिक का वो एंजॉयमेंट प्रोपेंसिटी होती है तो मैं कैसा दास हो सकता हूं यार, और वो भी कृष्णा मेरे को एक्सेप्ट भी नहीं करने वाला, तो भी मेरे को दास होने का पॉसिबल ही नहीं है। क्या क्लियर है प्रभु जी, क्या हमारे आचार्यों ने एकदम हाई स्टैंडर्ड ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस बताया है। और एक चीज होता है प्रभु जी, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच एवरी पर्सन शुड अंडरस्टैंड अबाउट मिस्टिक पावर। जो भी मिस्टिक होता है ना प्रभु, उसके अंदर ह्यूमिलिटी नहीं आती है। ह्यूमिलिटी कभी आती है प्रभु जी? व्हेन यू फील इट, आई एम फॉलन, I need Krishna's mercy at every step of my life. I am a fish without a water. I am suffering in this material world. There is no way I can come out of it without Krishna's mercy. I am helpless and hopeless in this material world. ये consciousness mystic में नहीं आता, क्योंकि mystic बोला कुछ होगा तो क्या ले, बरसात आ जा, दाड़म आ जा, I am controller. उसके अंदर humility नहीं आती है। Humility can come only when that person is absolutely helpless and hopeless in Krishna consciousness. और जब तक ह्यूमिलिटी नहीं आएगी ना, तब तक प्रभु कृष्ण हमको परफेक्ट कैंडिडेट नहीं समझेगा। चैतन्य चरितामृत के अंदर सनातन गोस्वामी और महाप्रभु का जो वार्तालाप हुआ है, तब महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी और राधानाथ महाराज इतना इस पे एम्फोसिस करते हैं। सनातन गोस्वामी जो है, सनातन गोस्वामी को महाप्रभु ने क्या बोला? जब सनातन गोस्वामी was showing his humility so much, at that time Mahaprabhu said, "Stop Sanatan, your humility is breaking my heart." And then Mahaprabhu said, "It is humility alone and nothing else that can conquer the heart of the Lord." क्या क्लियर बोला है। और राधानाथ महाराज used to give so much emphasis on this verse. It's humility alone and nothing else. और मिस्टिक वाला ह्यूमिलिटी नहीं पा पाएगा। क्यों? क्योंकि उधर उसको अंदर भी ईगो है ना, आई एम एंजॉयर, देखो एंजॉय कर रहा हूं मैं। वी नीड प्रभु जी, अभी सिर झुकाया है ना, दिस आई से अगेन अगेन, प्रभु सिर झुकाया, प्लीज डोंट गेट हुक्ड अप विद ऑल दिस थिंग्स। प्रभु हमारे स्टैंडर्ड में भी, टेंपल मैनेजमेंट के अंदर भी वो एंजॉयमेंट प्रोपेसिटी आ जाएगी। आपको कोई पोजीशन दिया है ना, फिर वो पोजीशन निकाल देगा तो प्रभु आप हिल जाओगे। ये ऐसा कैसा हो गया, ऐसा कैसा हो गया? ये मंदिर में नहीं रहने का, अपने को दूसरा मंदिर चला जाता है। That means most important thing, प्रभु जी, वो अपना position was more important. Servant of the servant was not important. Of course, there could be some other reason that is we don't want to see. But if this is the only reason, that is something very serious problem. That's why प्रभु जी, आपको मालूम नहीं है अपना ISKCON में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है मालूम है? I'll be little bit bold enough to tell you. बड़ा प्रॉब्लम ISKCON में अंदर सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है मालूम है? एक बार सबको एक बड़ा पोजीशन दे दिया रहता है और वो पोजीशन में से उसको बाहर निकाल ही नहीं सकता है। निकालेगा तो उसका रिपरकशन इतना जबरदस्त आता है ना कि वो रिपरकशन का कैलकुलेशन करके और उसको निकालने का कैलकुलेशन करता है, तो उसमें से समझ में आता है उसको रखना अच्छा है निकालेगा और प्रॉब्लम हो जाएगा। सीरियसली प्रभु जी, दिस इज ऑल द प्रॉब्लम्स आर देयर। वो उसमें ये दिखा रहा है प्रभु, एंजॉयमेंट प्रोपेंसिटी कितनी डीप रूटेड है। कहां शुद्ध भक्ति मिलने वाली है अपने को? कहां शुद्ध भक्ति मिलेगी भाई? हमारा आचार्यों ने क्या क्या स्टैंडर्ड बताया है, हमारी परंपरा क्या बता रही है? दिस इज व्हाट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम अस एंड दिस इज अ बिगेस्ट ट्रैप ऑफ माया। दिस इज अ बिगेस्ट ट्रैप ऑफ माया। क्या है, हम माया जो है हमको इस तरह से, अभी जो है प्रभु 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स चालू कर दिया, जपा करने दिया, एसोसिएशन करने लगा, भागवतम पढ़ने लगा, फिर जो है सीसी पढ़ने लगा, भगवत गीता पढ़ने लगा, वेस्ट टाइम नहीं करना, सब एकदम फोकस कृष्ण कॉन्शियसनेस में कर दिया, एकदम ही कृष्ण इज एवरीथिंग। इतना फोकस हो गया, और इतना फोकस होने के बाद में माया आपने को इस तरह से घुसा देती है,
पोजीशन ले ले, ये जगह ले ले, ये ले ले, फिर इसमें करते रहे सब, और उसी में फंस गए प्रभु हम लोग। और फिर जो है थोड़े समय के बाद में कृष्ण बड़ो चतुर, वो ऐसा करता है ना, थोड़े समय के बाद में वो पोजीशन निकाल देते हैं अपने पास, और ऐसा लटक जाते हैं अपन। फिर कभी होता है यार मैंने इतना भक्ति किया लेकिन इधर तो दिखता नहीं है, मेरे को तो इधर मंदिर से भागने की बात कर रहा हूं मैं। प्रभु वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट। इतना कठिन है प्रभु जी, इतना कठिन है। इसलिए बोल रहे हैं डीप प्योर डिवोशनल सर्विस इज वेरी 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 रेयर। व्हाई इट इज रेयर? बिकॉज ऑफ दिस रीजन। डिवोशनल सर्विस सब करेगा, हियरिंग करेगा, चैंटिंग करेगा, सब चीज करता जाएगा, लेकिन प्योर डिवोशनल सर्विस नहीं है, सब चीज छोड़ना पड़ेगा और कृष्णा के सामने खड़ा होकर के बोलना पड़ेगा, कृष्णा आई वांट ओनली यू एंड यू, कैसा भी तुमको हिलाओ, खाली मेरे को इतना करना कि ये सब चला जाएगा ना, तो मेरे को एक थोड़ा शक्ति दे देना इसको फेस करना, क्योंकि मैं बेसिकली कंडीशन सोल हूं ना, कंडीशन सोल हूं प्रभु, मेरा अनर्थ है, मेरे को शुद्ध भक्त नहीं हुआ, और आप मेरे को परीक्षा करने वाला है, क्योंकि आपको मेरे को आपको शुद्ध भक्ति देना है, तो मेरे को घबराएगी नहीं, रगड़ाएगी नहीं, तब तक मैं नहीं होने वाला हूं। तो आई हैव टू फेस द टेस्ट, लेकिन मेरी औकात नहीं है तो उतना करना कि आप मेरे को परीक्षा तो देना ही पड़ेगा आपको, तब तो मेरे को पोजीशन मिलने वाले, तो परीक्षा दो, लेकिन एक करना, दिस इज माई, ये फ्लेवर दे देना उस समय जो है ना, मेरे को नॉलेज बराबर देना कि दिस इज व्हाट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम मी, एंड यू गिव मी द स्ट्रेंथ दैट आई कैन एब्जॉर्ब इट, and I don't compromise my devotional service and keep the same consciousness what it was before. This every devotee has to pray. शुद्ध भक्ति चाहिए तो यहाँ पे लटकना नहीं है। इतना सैफरन पहन लिया, पूरा जीवन कृष्ण भक्ति के लिए दे दिया, और उसके लिए फिर लटक गया, वापिस पुनरपि जननम पुनरपि मरणम गटरे शयनम, वापिस इधर आना है। अरे मूर्ख है प्रभु, क्या पाया तुमने फिर? सॉरी थोड़ा हैवी हो गया क्या? हैवी हो गया प्रभु, 9:05 हो गया, बाप रे, अभी मैं बंद करता हूं यार, ये सब है ना, ये कितना सब बोलना था मुझे। आई विल नॉट स्पीक एनीथिंग प्रभु जी। सो एनीवे फाइनल में देयर इज सो मच थिंग्स आई वांटेड टू स्पीक बट आई विल नॉट स्पीक नाउ। मैं हर टाइम जो है नियम तोड़ता हूं, अच्छा नहीं लगता है मुझे। सो प्रभु, सो दिस इज व्हाट इज सपोज टू बी देयर। इवन प्रभुपाद ऑल्सो डिड इट द सेम वे। इवन हमारे राधानाथ महाराज, वाह महाराज वाज सो हैवी। अभी 2 मिनट निकालता हूँ। राधानाथ महाराज जो है, एक बार हमारा मालूम है, वो गणपति का मालूम है, गणपति पता है, वो गणपति का वो दूध पीता है मालूम है ना। अरे प्रभु, हम लोग क्या है, हम लोग का कुछ मिस्टिक क्या था, कुछ थोड़ी मालूम था, ऐसा ही सब लिखे पे गणपति दूध पीता है, गणपति दूध पीता है। तो आपको मालूम है ना, वो मंदिर के आगे सामने जो है ना, अपना मंदिर में एंट्री करते ऊपर गणपति है, तो हमारे सब ब्रह्मचारी लोग दूध लेकर के वो गणपति दिए, गणपति दूध पीता है, उधर गणपति दूध पीता है, तो उधर दूध देने को चले गए। भारत को कोई बोला नहीं कि इधर हम भी तो गणपति, अपना सच्चा गणपति है। वो दूध देने का चालू किया। उसमें महाराज वहां से कॉरिडोर से निकले, और जैसा महाराज वहां से कॉरिडोर से निकले ना, उन्होंने कहा व्हाट आर यू डूइंग? गणपति इज टेकिंग मिल्क, वी आर गिविंग मिल्क। महाराज ने देखा, और फिर महाराज कम डाउन आ गया। महाराज का फेस से समझ में आ गया कि गड़बड़ है, बड़ा लोचा होने वाला है। फिर महाराज ने क्या बोला? You don't have a faith when you do the offering to the deities are not taking prasad or doing as a ritual. They are definitely taking prasad. Just giving milk to Ganpati, and even if that Ganpati takes, some mistake might be done, some mistake has done something, and even if Ganpati will take milk, is it going to make any difference in your devotional life? Is going to be any change in your devotional life? You'll become more serious in devotional life? What is this nonsense? We are not meant for that. We want pure devotional service, and pure devotional service always takes long route. And you should be ready for that long route. सब चुप हो गए। दूध प्रभु जी टेक माय वर्ड। मेरे को उस समय जो है ना, मेरे को थोड़ी अक्कल आई कि क्या गौड़ीय संप्रदाय है। आई डिडंट नो ओनली सब क्या हकीकत में क्या डिवोशनल सर्विस है। ए तुम था ना उस समय, यू वर देयर ना गणपति में। मैं नहीं था उस समय, लेकिन जैसा मेरे मेरे को मेरा टेलीफोन किया वहां से, क्या बात, गणपति को दूध अपना गणपति को दूध मिला के नहीं।
अपना गणपति ने दूध पिया के नहीं। दूसरे सब अच्छे अच्छे मंदिर थे ना, मेरे घर के बाजू में एक गणपति का मंदिर था प्रभु, उन्होंने मंदिर ही बंद कर दिया और बाहर बोर्ड लगा दिया, हमारे गणपति दूध पीते नहीं है, मेहरबानी करके आना मत। प्रभु जी, those who are matured enough, they will understand it. See, what I mean to tell you is, Shuddha Bhakta, pure devotee, just goes to the essence. He doesn't go for all these small, small things. This is what is Krishna consciousness, Prabhuji. We wanted to have that. We don't want to get stuck up in between anywhere. We wanted to have this target in our life. We want pure devotional service and only pure devotional service, nothing else in between. And for that we have to pay the price. It's not going to be cheap enough. So Prabhu, I don't want to say anything more. There are many things I wanted to speak about. Second verse was speaking about the process of devotional service is so potent, Prabhu. नो डाउट ये सब चीज आपको एंजॉयमेंट प्रोपेंसिटी जो है प्रभु, आपको लगेगा कि ये कितना कष्टदायक है, लेकिन अगर आपने सीरियसली ले लिया है ना, तो प्रभु एक फेज आपके लाइफ के अंदर ऐसा आएगा कि आप ये कुछ भी एंजॉयमेंट प्रोपेंसिटी नहीं लिया है, लेकिन आपने प्रोसेस इतना सीरियसली फॉलो किया है ना, वो व्यक्ति का डिवोशनल लाइफ और उसका ब्लिसफुलनेस देख करके उसको आपको समझ में आ जाता है, इसके पास बहुत ऊंची चीज आ गई है, ये व्यक्ति के पास बहुत ऊंची चीज आ गई है, ये व्यक्ति बहुत बहुत कृष्णा कॉन्शियसनेस के अंदर ब्लिसफुल हो गया। ही अंडरस्टूड द जिस्ट ऑफ इट। आई हैव सीन, नॉट आउटसाइड छोड़ो प्रभु, हमारे इस्कॉन में मैंने देखा है जिन लोगों ने प्रोसेस डिवोशनल सर्विस का सीरियसली फॉलो कर रहे हैं और उसको ये कुछ नहीं चाहिए, न धनम न जन्म, कुछ नहीं चाहिए उसको सिर्फ सेवा करनी है, और वो जो है प्रभु जी वो सेवा के अंदर इतना अंदर से तड़बड़ हो गया है, उसको कुछ gross or a subtle sense gratification नहीं चाहिए. He just wanted to serve devotees, he just wanted to be selfless and he wanted to hear and chant the holy name. प्रभु मैंने देखा है ऐसे devotees प्रभु जी जो austerity हम कभी भी सपने में भी विचार नहीं कर सकते, ऐसा वो लोग की लाइफस्टाइल होती है और वो कंसिस्टेंट होती है, एक भी दिन छुट्टी नहीं होता है. लेकिन जब मैं वो डिवोटी को देखता हूं तो मुझे लगता है वाह यार क्या ये डिवोटी है, क्या ये डिवोटी ना अपनी लाइफ के अंदर जो है क्या उसको देख करके समझ में आता है जीने का तो ऐसा ही जीने का है. छोड़ दूं कि एग्जांपल दूं? बोलो भाई, ना तो मैं बंद कर दूं. है बोलू? प्रभु जी, I can give you one example. Why? Because I have seen it. I got so much inspired with that. There is one devotee, Gopal Krishna Maharaj का disciple है, गुड़ाकेश प्रभु करके है. Now I'll tell you his lifestyle, his schedule. I'll tell you. He was staying in Mumbai only, and then afterwards his Guru Maharaj, Gopal Krishna Maharaj, sent him to Kenya, and after going to Kenya, then he did preaching, and now he's old हो गया, तो he told his Guru Maharaj अभी मेरे को बाकी का जीवन अभी वृंदावन में ही निकालना है. वहाँ पे से भी वो भिलवाड़ा और वो सब जगह राजस्थान में प्रीचिंग करने जाता है. नाउ दूसरा सब डीप में जाने के छोड़ो उसको, उसका शेड्यूल मैं बताता हूँ, खाली घंटे का बताता हूँ, 24 घंटे का कैसा शेड्यूल होता है. He chants 128 rounds every day. How many rounds? 128 rounds. 11 घंटा उसका जपा में जाता है every day. 11 hours goes in japa. मॉर्निंग में उसका भी एक वाव उसका वो भी है कि जब सुबह में 4:10 को प्रभुपाद की आरती होती है ना वृंदावन में, उसके पहले उसकी 16 माला हो जानी चाहिए. वो एक उसका दूसरा वाव है. He gets up at 2 o'clock every day in the morning. 2:30 बजे जपा चालू कर लेता है और 2:30 से 4:20 में पहला 16 माला हो जाती है. देन प्रभु मॉर्निंग प्रोग्राम, फिर मॉर्निंग प्रोग्राम के बाद में जो है नरसिंह आरती और तुलसी पूजा वो और भागवतम क्लास, उसके अंदर उसने कैलकुलेशन किया 2 घंटा जाता है. मंगल आरती, दोनों मंगल आरती, नरसिंह आरती, भागवतम क्लास, वो 2 घंटा जाता है. तो 11 घंटा और 2 घंटा कितना घंटा हुआ? 13 घंटा. 13 घंटा हो जाने के बाद में every day 3 hours he reads Prabhupada books and our Acharya books. 13 hours और 3 घंटा कितना हुआ? 16 घंटा. 2 hours every day, 2 hours preaching. प्रीचिंग नहीं होगा तो पर्सनल काउंसलिंग करेगा, लेकिन एवरी डे 2 hours पर प्रीचिंग. कितना घंटा हो गया? 18 घंटा. 1 hour फॉर मॉर्निंग ड्यूटीज, स्नान करना है, बाहर जाना है, कपड़ा पहनना है, तिलक करना है, 1 घंटा उसने उसमें रखा है. कितना घंटा हो गया?
19 घंटा। 1 घंटा प्रसाद के लिए, थोड़ा बहुत जो है फैमिली के लिए थोड़ी बातें करना है। सुबह का प्रसाद, शाम को प्रसाद, बीच में कुछ, उसके लिए 1 घंटा। कितना घंटा हो गया? 4 घंटा सोने का। एंड ही इज नियरिंग 70 years old. प्रभु जी, मैं जब भी देखता हूं ना उसको, आई एम सीइंग फ्रॉम माय हार्ट, आई एम इन द फ्रंट ऑफ द डीटीज। प्रभु जी, मैं उनको देखता हूं ना तो मुझे ऐसा लगता है ये 25 साल का जवान आदमी जो है ना, जिस तरह से जीता है ना, ऐसा ही आदमी जीता है। इतना ब्लिसफुल, और उसमें कोई छुट्टी नहीं है। देयर इज नो हॉलीडे, देयर इज नो हॉलीडे। एंड ही इज विथ अस राइट नाउ। ये हमारे साथ में है। He is with us. This is the potency of devotional service. इतना ब्लिसफुल है। मैं बोलता थक नहीं जाते हो यार, एक दिन तो छुट्टी ले लो। Do you know what he says? इतनी छुट्टी लेने का, छुट्टी लिया यानी माया का अटैक किया मुझे मारने के लिए। छुट्टी क्या है? छुट्टी यानी अटैक, टेलिंग माया to trap me. This is the only way, and I'm so blissful, I'm so happy, so happy. This is the process of devotional service. इसको ऐसा देखते हैं ना तो प्रभु मालूम होता है पोटेंसी क्या है डिवोशनल लाइफ की, क्या डिवोशनल लाइफ के अंदर व्यक्ति जो है कहां से कहां निकल सकता है। और कलयुग बंबई ये टाइम में और हमारे साथ में जीता है, अभी भी है, और रोज का ये शेड्यूल उनका चल रहा है। Who can say that yeah, it is boring, consistency maintain नहीं कर सकता है, टेंशन आता है, ये नहीं कर पाता हूँ, ये नहीं कर पाता हूँ, मेरे को अभी बस आलस आता है, नहीं होगा, छुट्टी मिलनी चाहिए। कुछ छुट्टी नहीं है। आई रिमेंबर ही यूज्ड टू कम टू मुंबई, समटाइम्स ही यूज्ड टू कम टू माय हाउस। कभी कभी क्या होता है प्रीचिंग में, क्या होता है प्रभु जी, कोई आकर के बैठ जाते हैं और सब हल्ला डल्ला सब चालू कर देता है और उधर से निकल भी नहीं सकता है। ऐसा सीरियस प्रोसेस होता है कि निकल भी नहीं सकता है, और फिर बाद में वो 4 घंटा सोने का भी प्रॉब्लम हो जाता है, और 7 घंटे पूरे नींद नहीं हुआ तो वापस 11 घंटा जपा में गड़बड़ हो जाता है। तो वो क्या करे? तो फिर हुई टू टेल मी कि मैं उसमें मेरा प्रॉब्लम होता है, और तुम्हारा जपा फिर वो 11 घंटे की जगह पे 13 घंटा, क्योंकि नींद आती है तो जपा लपड़ा होता है ना, अटेंटिव होता है तो जपा एकदम पानी के जैसा जाता है। तो फिर बाद में जो है मैं बोलता क्या करता है, तो फिर सो वंस ही केम टू माय हाउस एंड मैंने बोला क्या करता है, कि नींद बहुत आ रही है क्योंकि कल रात को बहुत टाइम ज़्यादा गया, ये किया वो किया। तो मैं तो अभी क्या करोगे? तो फिर वो मुझे बताता है कि तुम्हारा बेडरूम किधर है, तो मेरा बेडरूम में लेके गया, और बेडरूम में बोला एग्जैक्टली 20 मिनट, 20 मिनट का 21 मिनट भी नहीं होना चाहिए, 20 मिनट में आकर के मेरे को उठाने का। ठीक है, 20 मिनट में उठ जाएगा वो, मैं जाऊंगा उसको 20 मिनट में, एग्जैक्टली 20 मिनट में उठ जाएगा। लेकिन 20 मिनट में बीच में एक बार मैं थोड़ा ऐसा देखा, मैं तो क्या करता है वो, ऐसा स्नोरिंग करके सो गया रहता है, और 20 मिनट के बाद में उठ गया। फिर मैंने कहा अभी नींद आ गया, तो कहा हाँ हो गया। फिर उसने मुझे बताया ये 20 मिनट सोता क्यों मालूम है? क्योंकि ये 20 मिनट सोने की वजह से मेरा जो 13 घंटा 14 घंटा जपक होता है ना, वो वापस 11 घंटे तक आ जाएगा। ये 3 घंटा मेरा बच गया 20 मिनट सोने की वजह से। कैन यू इमेजिन? ये जो है कौन बोल सकता है? ये प्रभु रियलाइज करने वाला व्यक्ति बोल सकता है। हमारे जैसे टक्कू मक्कू बोल सकता है, हम बोलेगा सो गया, सो गया, सो गया। These are the people who have done time management also, and they are so blissful. This is what is Krishna consciousness, प्रभु। क्या है प्रभु जी, क्या मिल गया है अपने को? Just take it seriously and see how much blissful will remain in devotional life. प्रभु अभी मैं बंद करता हूँ, 9:20 आज भी हो गया है। I don't know if you tell me, then we'll take questions, otherwise we'll wind it up. हाँ, questions you want to take it? ठीक है प्रभु जी, फिर मेरे को बोलना मत है, लेट हो गया। चलो प्रभु जी, anybody has any questions, please let me know. प्रभु जी पहला मेरा प्रार्थना करना भाई, मैं फड़ाका बंद बातें तो बहुत करने में होशियार हूँ, लेकिन प्रभु गुजराती हूँ ना, गुज्जू लोग बहुत बनिया लोग बहुत बातें करने में होशियार होता है, और उसमें आई डोंट नो वेदर यू नो इट और नॉट, बट प्रभु आई हैव रिसीव्ड देयर इज वन कोर्स कॉल्ड सेल्स मैनेजमेंट, सेल्समैनशिप एंड सेल्स मैनेजमेंट। उसके अंदर आई स्टूड फर्स्ट इन द वर्ल्ड आउट ऑफ 40 कंट्रीज एंड गॉट ए गोल्ड मेडल।
तो यू कैन जस्ट इमेजिन उसमें मेरी कितनी इसमें एक्सपर्टीज है सेल्स मैनेजमेंट में, और वही इधर लगाता हूँ, वो इधर लगा लेता हूँ प्रभु जी। तो उसमें ऐसा मत समझना कि अंदर कुछ डेप्थ है, डेप्थ कुछ भी नहीं है, इसलिए तो इधर आया हूँ आप लोग का आशीर्वाद लेने के लिए। तो प्रभु मेरा ध्यान रखना प्रभु, आई नीड योर मर्सी। आई अंडरस्टूड वन थिंग प्रभु, टू डू डिवोशनल सर्विस अलोन is extremely difficult. To be with the devotees and to be with them, to serve them, to take their blessings and help each other, that is what it is required at this age in my life. तो प्रभु आई नीड योर मर्सी मोर। मेरा ध्यान रखोगे ना, पहले एक बार बोलो सब ध्यान रखोगे तो ही क्वेश्चन आंसर करवाऊंगा मैं। प्लीज प्रे फॉर मी। एवरीबडी प्रे ना। પ્રભુ પ્રાર્થના કરશો ને મારા માટે? નહીં કરો? નહીં કરો તો પ્રભુજી પછી વારથી નહીં થાય યાર, એ આવવાનો મતલબ જ ન રહ્યો। પ્લીઝ પ્રાર્થના કરજો પ્રભુ, પ્લીઝ પ્રે ફોર મી પ્રભુ, અધરવાઇઝ આઈ હેવ નો હોપ ટુ સર્વાઈવ ઇન ડિવોશનલ લાઈફ। I have understood one thing, getting mercy of devotees is more important than your personal sadhana also। पर्सनल साधना जो है प्रभु जी क्या करेंगे, कितना कर सकते हैं, इतना अनर्थ मारता रहता है। लेकिन अगर डिवोटीज ने मर्सी दिया है ना, तो कृष्णा हमारी बैलेंस शीट देखेंगे और डिवोटी का रिकमेंडेशन देखेंगे। तो डिवोटी का रिकमेंडेशन ज्यादा वेटेज देगा तुम्हारी साधना से, और उससे वजह से तुमको धक्का लग जाएगा। so much dependable on devotees mercy प्रभु। Please everybody please pray for me, including Mataji, please pray। Okay Prabhu, we'll start the questions. Anybody has any question? Yeah, nobody has any questions, correct? Huh? I don't remember one right now, but this is one of the lecture. Maya knows are in and out, and one of the best lecture which I love is our desperate need. This is my most favorite lecture. I might have heard this lecture not less than 200 times. Whenever I become loose in my Krishna consciousness, I hear that lecture. Our desperate need. रुक्मिणी है, उन्हें खाली एक desperate need डालेगा ना तो राधानाथ महाराज डालेगा तो आपको मिल जाएगा। Then there is one lecture called as a begging हरिदास ठाकुर। जब भी तुम्हारा जपा ढीला हो जाता है ना तो begging हरिदास ठाकुर का lecture सुनने का। It's one of the best lecture I have. I have never seen Radhanath Maharaj speaking on Harinam so powerfully in any of the lecture than begging Haridas Thakur. Excellent lecture, excellent lecture. फिर अभी मेरे को दूसरा याद नहीं है अभी। ओके, एनीथिंग एल्स प्रभु? यस प्रभु जी। डॉक्टर है, यू आर तो डॉक्टर। बोलो बोलो। I work in Bhaktivedanta Hospital. है? I work in Bhaktivedanta Hospital. You are working in what? Bhaktivedanta Hospital. हाँ। So this is a mix of, let's say, a spiritual care organization and a professional organization. तो उस तरह के organization में was before that I was in Kokilaben Hospital for a decade, heading that research unit. So I came from a very different culture, very corporate culture. When I came to Bhaktivedanta Hospital, it seems little mixed culture. तो उस तरह के कल्चर में वेयर डिवोशन इज अ प्रायोरिटी देन प्रोफेशनल लाइफ, वैसे मिक्स कल्चर में जैसे आप वी आर टेलिंग इन द लेक्चर टुडे दैट ट्राई टू डू सेल्फलेसली एंड डोंट गेट बिहाइंड दो सीट्स और द पोजीशन डेजिग्नेशंस। तो व्हेन आई ट्राई टू डू दैट आई सी दैट इट इज नॉट वर्किंग ओनली, सो somehow other then I also get disturbed and I also then go behind taking credits only. Though there are all devotees, senior people who are working with me, some are junior to me, some are senior to me. So in that culture, because I am spending most of maybe 90% of my daily life there only. So I go home, take prasad and then go to rest. So when I am spending most of my time in that hospital setting, then I need to be more Krishna conscious there. So instead of that, what is happening is I am into politics or finding it so difficult to convince people. And then in such an atmosphere, how do I remain Krishna consciousness and how do I still serve without taking any credits? So very difficult task, without disturbing devotees, without... Prabhu, exactly, you might be in Bhaktivedanta Hospital, I was in the stock exchange. I don't know, but if you ask any outside person and if you tell him,
working in stock exchange is difficult or working in Bhakti Vedanta is difficult, then most of the people will say working in stock exchange is difficult. I was in very big firm, J.G. Shah and Company. We were 5th in Bombay Stock Exchange. And I was a partner. Now, temple atmosphere and stock exchange is like a North Pole and a South Pole, Prabhu. Absolutely. Stock exchange means raw material is also money and finished product is also money. And people will do anything and everything for the sake of money. And you have to be expert in that. Otherwise, people will not come to you. People want something extra, so much expertise into that. Otherwise, they will not put their money. और एक चीज याद रखना, जब भी कोई भी व्यक्ति तुमको पैसा देता है ना, तो भले वो कुछ भी बोलेगा नहीं, लेकिन वो इंटरनली वो पूरा कन्विंस करके आपको बता रहा है, मुझे तुम्हारे पे पूरा विश्वास है. तो पैसा नहीं देगा, दूसरी सब बातें करेगा. पैसा दिया है शपथ लेने का, उसने पूरा विश्वास उसने आ गया है. कोई भी पैसा देता है और उसमें अगर उसको मालूम गिरा ये खाली हरे कृष्ण करता है, तो प्रभु कोई पैसा नहीं देगा. कोई पैसा नहीं देगा. You have to be expert also. At the same time, you have to see that the channel of Krishna consciousness doesn't get disturbed. So, if a stage came in my life that I told to Radhanath Maharaj कि महाराज अभी छोड़ो यार, पढ़ा लिखा हूँ, किधर भी नौकरी मिल जाएगी, लेकिन ये मेरे को नहीं कर पाऊंगा मैं. I will not be able to survive. It is too much for me now. So then Maharaj said that no, but I want you to be in stock exchange. मैंने बोला महाराज मेरे लिए नहीं है अभी. मेरा पहला एडमिशन बहुत था स्टॉक एक्सचेंज का, लेकिन अभी मुझे नहीं चाहिए वो. देन महाराज टोल्ड मी वन थिंग, स्टॉक एक्सचेंज के अंदर तुम जितना टाइम तुमको देना पड़ता है उससे ज्यादा बाहर टाइम देना पड़ेगा. मैं तो यस दैट इज देयर. स्टॉक एक्सचेंज में एक चीज बहुत अच्छा रहता है, कम टाइम में पैसा ज्यादा मिलता है, लेकिन टेंशन एंग्जाइटी प्रेशर जबरदस्त होता है. यू आर ऑलवेज हुक्ड अप विद ऑल टेंशंस एंड एंग्जाइटीज ओनली. लेकिन पैसा फटाफट मिल जाता है, और टाइम बहुत फिजिकल टाइम बहुत कम देना पड़ता है. So balanced time you can give in devotional life. Yeah, that is there. In that, but my mental situation is very bad, Maharaj. Even if I give over here, my mental situation is always in anxiety. So then Maharaj gave me a very good advice, Prabhuji. He gave me that advice is that I want you to be in the stock exchange, but I'll give you one Guru mantra. And if you follow this Guru mantra, then Maharaj, this is what Maharaj's words are. I assure you, nothing will go wrong in stock exchange. तो प्रभु अपने को तो यार जैकपॉट मिल गया ना. मैंने बोला महाराज पकड़ लूंगा मैं पकड़ूंगा, लेगा एकदम बराबर पकड़ लूंगा मैं इसको. आई वांटेड टू सी टू इट दैट आई वांटेड टू, क्योंकि प्रभु जी मेरा भी अंदर जो है ना प्रभु, मुझे भी समझ में आ रहा था कि जो नोट छापने का बिजनेस है ना, वो इधर स्टॉक एक्सचेंज में ही है. पैसा फटाफट मिलता है. सब्जेक्ट टू योर कॉन्शियसनेस इज ओके, यू डोंट गेट कैरिड अवे, you don't get tempted, then you really make good money. But उसना दूसरी जगह पे नहीं मिलेगा, और वो भी I have to start from zero with other place, so it will take some time for me to come up. So then Maharaj told me, before entering the stock exchange tower, you should take a absolute commitment that you will not enter the stock exchange tower till the time you don't complete your first 16 rounds of Hare Krishna Maha Mantra, attentively focused, and in one session itself, and not traveling or this or that. It should be only chanting. अभी अपन chanting करते हुए traveling करते, that means we are giving less preference to our holy name, Prabhu. We are telling to holy name, मेरा traveling भी हो गया और holy name भी हो गया. That means holy name is not being given complete preference or complete focus and complete status. Chanting means only chanting. Mobile भी बंद, ये भी पहला 16 माला, दूसरी माला चलेगा, लेकिन पहला 16 माला तुमने वाव लिया है. First 16 rounds you do it in such a way that you should convince Krishna that Krishna, I'm absolutely with you now, nothing else. And then he told me, because I'm in the stock exchange, he told me, in addition to that, you have to either read Bhagavatam or hear Bhagavatam. And you should associate with the devotees, sincere devotees. Sincere devotees, bola, then Maharaj said, specifically, you should associate with the renounce order people. Why renounce order people? Because ये renounce order वाला तो फकीर आदमी है ना, उसके पास कुछ बैंक बैलेंस नहीं है, कुछ पैसा नहीं है, फकीरी का जीवन जीते हैं, मंदिर में जो देता है वो खाता है. Although with that consciousness, although they have that situation, yet they are blissful in Krishna consciousness. तो तुमको अक्कल आएगी, तुम ऑफिस में जाएगा ना, ये लोग फकीर लोग, इसके पास कुछ नहीं है तो भी आनंदित है, और मैं रुपया करता हूँ, क्या पागल हूं मैं? रुपये से आनंद नहीं मिलता है, आनंद तो जो है दूसरी जगह पे ही है.
That conviction you will get it regularly. इसलिए you don't get carried away. But then he told me one thing more. He told me that it could be that way, that you might not be able to chant, or you might not be able to read or hear Bhagavatam before going to the stock exchange, or you might not be sometimes associating with the brahmacharis, because I stay in Borivali and Gopinath temple was in Chopati. It takes around 1.5 to quarter to 2 hours for coming and going. So it might be so. But one thing should be definitely sure, that you have to do in a day. Reading, hearing should be done in a day, and as far as possible, association, you should do it regularly. But as far as one thing is concerned, you should not enter the stock exchange tower till the time you have not completed your 16 rounds. And that too very focused and fixed up. ये मैंने बोला महाराज जल्दी जाने का है तो क्या जल्दी जाने तो जल्दी उठ जाओ. क्या है, रुपया कमाने के लिए नहीं जाता है क्या? तुम लोग जो है, तुम अगर स्पेशलिस्ट डॉक्टर ने बोलेगा ऑपरेशन करने का है, अभी करने का है, तो तुमको वो पेशेंट पे बहुत दया नहीं है, तुमको रुपये पे है. सॉरी हाँ प्रभु जी, आई एम नॉट टेलिंग टू यू, बट दिस इज द रियलिटी. वो पेशेंट का जो होने लेकिन अपने को लड्डू ज्यादा मिलने वाला है, इसलिए तुम भागता है उधर. बराबर है. सो देन मैनेज इट आउट. तो प्रभु जी हम लोग फिर आई प्रभु जी somehow, आई एम सॉरी टू टेल यू, बट प्रभु आई टुक इट वेरी सीरियसली इन माई लाइफ. I took it very seriously. I understood. My Guru Maharaj has told me, I have a full faith in him. He will take care of me. Prabhu, this instruction I got it in the year 1989. 89 I got it. 89 or 90, I don't recollect it. 88 or 80, no, 89 mila. 89 or 90 I got this instruction. Prabhu, I took it so seriously in my life. So Prabhu, now 3 years से मैंने ऑफिस जाने का बंद कर दिया है. So that means 2020, around 31 years, 30 to 31 years हो गया है प्रभु. I'm not saying that I'm great प्रभु. This is Maharaj has helped me so much in my Krishna consciousness. 31 years के अंदर मैं सिर्फ 3 दिन स्टॉक एक्सचेंज में गया हूं मेरी 16 माला किए बिना. वो 3 दिन में एक दिन क्या हुआ था, स्टॉक एक्सचेंज में आग लग गया था, और वो मेरी ऑफिस में आग लगा है, और मेरी ऑफिस की वजह से 7 दिन स्टॉक एक्सचेंज बंद रहा है. और मैं माला कर रहा था, मेरा पार्टनर का टेलीफोन आया, आग लग गई है भाई, तू आ जा इधर, सब लेटर्स मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को लिखना है, कंपनी सेक्रेटरी को ये वो सब चीज लिखना है, और तू आ जा जल्दी. उस समय मेरे को हुआ कि बाप रे, अभी ऐसा नहीं बोल सकता मैं, मुझे माला करना है, मेरी ऑफिस में आग लग गई है, वो पूरी ऑफिस साफ हो गई है. तभी मैंने बोला मैं आता हूँ. उस समय मैंने 16 माला बाद में किया है. एक दिन ऐसा हुआ है कि जो है प्रभु, एक कोई व्यक्ति आया था एब्रॉड से खास मुझे मिलने के लिए, और उसका कुछ फ्लाइट लेट हो गया, और दूसरा फ्लाइट कनेक्टिंग फ्लाइट जो है वो राइट टाइम पे हो गया था, यानी राइट टाइम पे जा रहा था, और उसको टाइम बहुत कम हो गया था, और वो कम टाइम में एक्सक्लूसिवली मुझे मिलने ही आया था एब्रॉड से, और वो फिर वापस चला जाने वाला था. और फिर मुझे हुआ कि अभी मैं बोलूँगा माला कर रहा हूँ. इतना खर्चा करके एब्रॉड से मिलने को मिला है, आई कैन नॉट बी सो फैनेटिक. तो तभी एक दूसरे दिन मैंने 16 माला छोड़ा है, और तीसरा अभी मुझे याद नहीं है क्या हुआ है. बट वॉट माई, अच्छा नाउ इट इज नॉट से मैं कुछ ग्रेट हूं, मैं घबर गया था प्रभु, मैं कुछ ग्रेट नहीं हूं, मैं घबर गया था. मुझे मालूम था ये जगह पे रहना, यानी मेरे पास कोई साधन होना चाहिए, मेरे को कुछ ऐसा कवच मिल जाना चाहिए कि जो कवच के सहारे मैं जो है सर्वाइव कर पाऊं. और मैं देख रहा था प्रभु जी कि जिस दिन मैंने जपा अच्छा करके जाता था ना प्रभु, सब मेरे ऑफिस के अंदर सब गैमलर ही बैठते थे, सब सटोरियो लोग बैठते थे. रिलायंस लिया, एसीसी बेचा, लार्सन लिया, ये क्या क्या चल रहा था. और जब भी बैलेंस शीट जैसा भी आता था, आई वाज अ रिसर्च एनालिस्ट, सो आई टू से ये मार्केट में इसका ये भाव होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए. तो मेरा ब्रह्म वाक्य होता था, मैं जो बोलता था वो ब्रह्म, उसमें सब लोग लेती देती कर लेते थे, उसमें मेरे को कुछ मिलता नहीं था. माई ऑफिस वॉज गेटिंग, आई वॉज अ पार्टनर ओनली न्यू इशू वेर आई वॉज नॉट गेटिंग एनी, माई बिजनेस वॉज डिफरेंट, बट दे वर एम्प्लॉइंग मी एंड दे वॉन्टेड मी टू डू दिस थिंग सो दैट दे कैन अर्न मच मोर देन मी. they were able to earn more. तो मेरे को बोलते थे आप बैठना ना, प्लीज बैठना, एडवाइस देते जाना. प्रभु जी, आई वॉज वॉचिंग देम, दे मेक्स लैक्स ऑफ रुपीज, खोते भी थे और कमाते भी थे, लेकिन मेरे को मालूम करता था ना, मेरे एडवाइस से उसने ले लिया और एडवाइस पे बेच दिया, उसने कमा लिया, उसने इतना पैसा कमा लिया. प्रभु, आई कैन टेल यू, बनिया का बच्चा हूं प्रभु, एंड दैट आल्सो आई स्टार्टेड अ लाइफ फ्रॉम जीरो. सो बिकॉज वो मेरे अंदर से डिजायर थी कि मैं भी कमा लूं. कमाने की इच्छा क्यों नहीं होती यार, पैसा तो बनिया का बच्चा है यार, खून खून में रुपया होता है हमारे जीवन में.
पैसे कमाने की बहुत इच्छा हो जाती थी, बट आई कैन टेल यू वेरी क्लियरली प्रभु, जो मुझे पैसा बचा है ना प्रभु जी, जो जिसने बचाया है ना, दैट इज हरि नाम. एंड टुडे आई एम स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ द ऑल्टर इन द टेम्पल इटसेल्फ. मैंने वो 31 इयर्स के अंदर मैंने एक सौदा भी गैम्बलिंग का नहीं किया है. Although I was in the heart of gamblers. And it is not so that I am something special. प्रभु मुझे मालूम है मेरी क्या औकात है, बट मुझे पक्का पता है ये हरिनाम का कवच मेरे को प्रोटेक्ट कर लिया है. That's why I understood with this हरिनाम is everything. Everything else is nonsense. अगर हरिनाम ने बराबर मैंने शेल्टर ले लिया, everything will go on track. तो प्रभु, now coming back to your question about Bhakti Vedanta, I would rather prefer it very clearly. I'll advise you very clearly. The way Guru Maharaj has told me, that you go out to your profession only after completing your first 16 rounds. Just do it very seriously, Prabhu. And in the day, try to find out some ways and means by which you can read and hear Bhagavatam, associate with the devotees as far as possible, and keep your life completely focused in Krishna consciousness. सुबह के टाइम पे माला करके, फोकस माला करके जाते हैं ना, तो पूरा दिन जो है ना प्रभु, बाहर की हवा नहीं आती है. Everybody agrees or not? ये मेरा कन्विक्शन हो गया है प्रभु जी, ये मेरा कन्विक्शन हो गया. That's why Prabhu, many and we have a Zoom Japa also, and many in our Borivali also. So many devotees have taken a vow only, very clearly. They will not leave their house unless until they don't complete the 16 rounds. जल्दी जाने का तो जल्दी उठ जाने का, बस सिंपल है. और वैसे भी पूरे दिन में करना ही है ना, क्यों बिना मतलब का सुबह में नहीं कर लेते? सिंपल है यार, करना तो है ही ना, तो क्यों ना सुबह में कर ले लेते हैं. बाद में और वो एक जिसका सुबह में हो जाता है ना, वो लटकता तलवार नहीं रहता है प्रभु, एकदम टेंशन फ्री रहता है. उसको याद रहता है, कोई इधर बुलाया, तुम्हारा कोई ऑपरेशन दूसरा है, स्पेशल आ गया, शाम को बड़ा ऑपरेशन आ गया, तो माला करूं कि ऑपरेशन करूं? होता है कि नहीं होता है? वो टेंशन नहीं होता है प्रभु जी, एकदम रिलैक्स रहते है तुम. दिस विल मेक योर स्पिरिचुअल लाइफ वेरी स्टेबल प्रभु. इवन माताजी बोलेगे, माताजी लोग, अरे सुबह में हम कैसा माला करके बैठ सकते हैं, हमको घर का टिफिन बनाने का, हस्बैंड का, बच्चे का टिफिन बनाने का है, बच्चे को स्कूल या कॉलेज में भेजने का है, हस्बैंड को ऑफिस में भेजने का, उसका टिफिन देने का, तो माला सुबह में लेके कैसे बैठ सकते हैं? इन अवर बोरीवली प्रभु जी, मैनी माताजी हैव टेकन दिस कमिटमेंट. एक बार वो हस्बैंड गया काम पे, बच्चे कॉलेज में गए, फिर वो माताजी को कोई पूछने वाला है क्या करता है तुम? गया, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गया, उसका ड्यूटीज हो गया. मैनी माताजी हैव टेकन दिस कमिटमेंट. They will not take the lunch prasadam till the time they don't complete the 16 rounds. उसमें क्या फर्क है? क्या फर्क पड़ता है? क्या तकलीफ होती है? उसको बैक टू गॉड नहीं जाने का है क्या? इधर लटकने का है, लाचारी का जीवन जीते रहना है. And I have seen many of the Matajis, because I used to ask him, माताजी सब बराबर चालते थे, तो कभी कभी क्या है, माला करने बैठते और कोई गेस्ट आकर के टपक जाता है और ऐसा गेस्ट हैरान करता है, इसको मालूम नहीं है कि अपना तो खाने का भी बंद है, कुछ मिलने वाला नहीं है. कभी शी यूज्ड टू टेल मी, रात को 9 बजे तक कुछ खाया नहीं रहता है. क्यों? वो आकर के बैठ गया रहता है, वो जाता ही नहीं. But this is the price you have to pay for Krishna consciousness, Prabhu. Your actions should speak more than the words. Then Krishna takes us seriously. Is it okay, Prabhuji? Thank you, Guru. Sorry, Prabhuji, but this is what it is really helping. I am convinced with one thing, Prabhu. Harinam is everything, Prabhu. Harinam gives so much shelter, Prabhu. क्या shelter मिल जाता है. सुबह के टाइम पे ब्रह्म मुहूर्त में एक ही आसन में एक ही सिटिंग के अंदर माला करके जाओ, और दूसरे दिन देखना कि उसके पहले दिन जो है तुमने सुबह में 2 माला, दोपहर में 2 माला, शाम को 8 माला ऐसा करके माला किया है, और दूसरे दिन किया, दोनों दिन में आप चेक करना, वही अटैक माया का आएगा आपके सामने, वही अटैक आएगा. जिस दिन आपने माला नहीं बराबर किया, उस दिन आप माया का वो अटैक से तुम यू गेट कैरिड अवे, और वही चीज आपको दूसरे दिन आई, और जिसके आपने सुबह में माला करके गए और अपनी कॉन्शियसनेस बराबर करी, वही अटैक आएगा. एंड यू से क्या नॉनसेंस है यार, आई हैव कृष्णा विथ मी नाउ, क्या दिस इज ऑल नॉनसेंस. फट करके वो माइंड के अंदर ये थॉट आएगा. ये दिखा रहा है प्रभु जी पोटेंसी क्या है हरिनाम की. आपने तो प्रैक्टिकल आदमी है प्रभु जी, हमने तो देख लिया. प्रभु जी मैनी पीपल डर हरिनाम को बोला, मैंने मेरा कुछ अक्कल नहीं है, मैंने तो प्रैक्टिकल देखा. स्टॉक एक्सचेंज में जाने के बाद में मैं बच गया, दैट इज हरिनाम, बस सिंपल. मुझे दूसरा कोई अक्कल नहीं है प्रभु जी. स्टॉक एक्सचेंज में जाने के बाद में मैं वहां का कोई भी
चीज में से बच गया, दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ हरि नाम। बस प्रैक्टिकल दूसरा सब हरि नाम में ये होता है, ने सर्विस एटीट्यूड, ने हरे का ये मतलब, ने कृष्णा का ये मतलब, ने ये मुझे कुछ समझ में नहीं आता। मुझे खाली एक ही चीज है, हरि नाम लूंगा तो बचूंगा, नहीं तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। ओके प्रभु जी, आई थिंक शुड एक ही क्वेश्चन, अभी ज्यादा नहीं प्रभु जी, बहुत हो गया, कल के जितना ही टाइम हो गया वापस। ओके प्रभु, आई लैंड इट प्रभु जी, विल लैंड इट ना प्रभु, प्लीज प्रे फॉर मी प्रभु, मेरे लिए प्रार्थना करना कि मैं लटक ना जाऊं इधर। एक चीज अभी एक एंड में बोल देता हूं, हर एक व्यक्ति जो भी गौड़ीय संप्रदाय में आया है, प्रभुपाद का मर्सी लिया है, गौड़ीय संप्रदाय बराबर सीरियसली लिया है, राधानाथ महाराज का शेल्टर लिया है, वो व्यक्ति के लाइफ के अंदर एक फोकस ही हो जाना चाहिए, एक गोल बराबर क्लियर होना चाहिए। और वो गोल क्या होना चाहिए? कोई भी हालत में बस ये खत्म करना है, आई वॉन्ट टू फिनिश माई बिजनेस इन दिस लाइफ टाइम इटसेल्फ। इधर लटकना नहीं है, पुनरअपि जननम पुनरअपि मरणम नहीं, मुझे खाली अभी कृष्णा ही चाहिए। आई वॉन्ट इट एंड आई वॉन्ट टू फिनिश माई बिजनेस इन दिस लाइफ टाइम इटसेल्फ, नो मोर डूइंग एनीथिंग नॉनसेंस नाउ। हर एक डिवोटी के अंदर, अरे क्या पाया ना था, वापिस इधर आने का यार क्या है, कितना तकलीफ है। प्रभु जी मेरा एक सिंपल फॉर्मूला सबको पूछता हूं, हर एक व्यक्ति जवाब देना मुझे, पूरे दिन के अंदर कितना हम अनर्थ के सामने फाइट मारते और कितनी बार हम कृष्णा को याद करते? पूरा दिन अनर्थ के साथ में फाइट मारने में जाता है। अरे वापिस ये कंटिन्यू करने क्या है, मर गया यार, क्या सीखा हमने कृष्णा कॉन्शियसनेस में से, क्या सीखा हमने? इतना फाइट मारने के बाद में भी इधर रहने का, हम मूर्ख है, हमको मानव देह मिला है, जरा भी इंटेलिजेंस नहीं आई हमारे में कि हमको अक्कल आनी चाहिए कि भाई क्या हुआ है हमारी लाइफ में। थोड़ा हैवी हो गया क्या? दिस इज व्हाट इज कृष्णा। सो प्रभु आप भी मेरे लिए प्रार्थना करना, मैं भी आपके लिए प्रार्थना करूंगा, हम निकल जावे इधर से, बहुत हो गया यार, बहुत मार खा लिया। मैं तो नहीं हूं प्रभु, मैं वासुदेव दत्त के प्रहलाद महाराज ऐसा नहीं हूं कि इधर सब लोग को लेकर के सबको भेजने के बाद में मैं आऊंगा। मेरे को मेरे जात पे ही विश्वास नहीं है यार, कुछ लटक गया इधर तो किधर जाऊंगा यार। अपने को जितना हो सके इतना इधर करूंगा, बाद में हमेशा के लिए चला ही जाने का इधर से, अपने को नहीं चाहिए इधर। आई हैड अ टॉक विद भक्ति रसामृत महाराज, यू नो भक्ति रसामृत महाराज, वी आर फ्रेंड्स ना प्रभु जी, हम लोग ने साथ में पढ़ाई किया है ना। तो मैं भी उनको बोलता हूँ, तो महाराज तुम्हारा क्या है? तो मुझे भी निकलना है। तो यार सन्यासी है, तो ये कर रहा हूँ ना, अभी सन्यासी की सेवा कर रहा हूँ, लेकिन मुझे आना नहीं आना है। तो महाराज दैट इट वाज ऑथेंटिक नाउ, निकल जा रहा है इधर, नहीं आना। ओके प्रभु, आई लैंड इट। वंश कल्पतरुवैश्य कृपा सिंधु वह वच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जय श्री प्रभुपाद, जय श्री गुरु महाराज, जय श्री अनंत कोटि वैष्णव वृंद। थैंक यू वेरी वेरी मच। हरि बोल, हरे कृष्णा, हरि बोल, जय, धन्यवाद।